So thank you so much for joining once again, and we start the Q&A session first, और उसके बाद last 15 minutes will be for the 5 AM participants. Then we'll discuss for the how the routine went for them in the 5 AM. Okay. So Q&A session. अच्छा, बाकी सब okay. गोपी जी, yes, आपका हाथ खड़ा तब से मुझे बताइए. हाँ जी, हाँ जी. बोलिए, बोलिए, बोलिए. Sir, before we start something, I just want to बाकी say a सब, few lines. sorry, that one you second. published. बाकी सब अपने हाथ नीचे कर लें. Sorry, one second, गोपी जी. बाकी सब अपने हाथ नीचे कर लें. The emoticons जो हैं, you can put them down, and everyone please mute yourself. I think ये खुद ही इस बात का ध्यान रखें कि please keep yourself on the mute. Yes, गोपी जी, start with you. Sir, I don't want to ask a question. I just want to say a few words. मैंने कुछ लिखा है. If you permit, I'll like to share. Okay, go ahead, please. It is in context to your birthday. Sir, before I start speaking, I would Okay. like to tell you that we are 3 sisters here, me, Juhi, and Khushi. And these are our collaborative feelings that I'm going to share right now. Oh, nice. Thank you. That's very kind of you. Please go ahead. Yes. Dear sir, you are such a great blessing for all of us. I would like to thank God for your existence. I would also like to thank you for giving us your time, believing in us, and giving us this opportunity to do amazing things. Our world was only limited to our immediate surroundings, but you opened up new perceptions for all of us. You showed us how to deal with life and made us realize the importance of each day. Thank you, sir, for being you. You yourself is the biggest gift to the earth. Thank you, sir. I wish you happiness, health, and love. Thank you. How nice. Thank you so much. That is very, very kind of you. Thank you, Gopiji. Thank you, Khushi. And thank you, Juhi. Really appreciate all your efforts and truly, truly from the bottom of my heart. Thank you. That's very kind and graceful of you. Thank you. Thank you. So, सवाल जवाब शुरू कर सकते हैं. I'm sure बहुत सारे सवाल हैं. आते रहते हैं, मरते रहते हैं. तो आज कोशिश करते हैं कि कुछ सवालों के जवाब दिए जाएं. कोशिश तो यही रहेगी कि हर सवाल के जवाब में कुछ ऐसा हो जिससे आप कुछ समझ भी सकें, सीख भी सकें, सभी के लिए बेनिफिटेड हो. So yes, let's start with the Q&A. Who wants to ask the question first can please raise your hand and then we'll try and answer it. Okay. राशि सक्सेना जी, आप सवाल पूछना चाहते हैं इसलिए हाथ खड़ा किए. हाँ, yes sir. Okay. बाकी सब म्यूट कर लें, हम सिर्फ राशि जी से बात करते हैं. Okay? हाँ, yes sir. एक सेकंड. कहीं से तो आवाज आ रही है पीछे से. 1 second. Let me mute all participants. हाँ जी राशि जी, you can unmute yourself and you can ask the question. Unmute yourself. Okay. अभी आवाज आ रही है ना आपको? अभी आवाज आ रही है, बोलिए. जब हम प्रेजेंट मोमेंट में रहते हैं, उसको एंजॉय भी कर रहे होते हैं, फिर भी पास्ट मोमेंट की जो भी फियर्स होते हैं वो हमें प्रेजेंट मोमेंट में परेशान करते हैं. अभी मेरे 2 फियर्स हैं, एक पर्सनल लाइफ, एक प्रोफेशनल लाइफ. मैं 5 इयर्स से कॉर्पोरेट कंपनी में काम कर रही थी. वहां पे मेरे साथ जो मेंटल ट्रॉमा मैंने फेस किया है उसके कारण मैंने रिजाइन कर दिया, क्योंकि वो इतना ज्यादा बढ़ गया था कि वो मेरी फिजिकल हेल्थ को इम्पैक्ट कर रहा था. अभी मैं प्रिपेयर भी कर रही हूँ फ्यूचर के लिए, बट ये जो पास्ट है मुझे बहुत परेशान करता है प्रेजेंट मोमेंट में. तो अभी मैंने आपका 5 AM क्लब ज्वाइन किया है, मुझे काफी रिलीफ मिला है, मेरा स्ट्रेस लेवल काफी कम हो गया है. थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी टू जॉइन दिस सेशन. थैंक यू, दैट्स वंडरफुल. So I want to enjoy this present moment and move forward in life. But if you want to enjoy the present moment and embrace this moment. Rashi ji, so what happens is हम कहते तो हैं हम प्रेजेंट मोमेंट में हैं, लेकिन एक्चुअली हम प्रेजेंट मोमेंट में होते नहीं. हम प्रेजेंट मोमेंट में पास्ट के बारे में जब सोच रहे होते हैं तो हम पास्ट में जंप कर चुके हैं. वी आर एक्चुअली इन द पास्ट. वी आर नॉट लिविंग एम्ब्रेसिंग द प्रेजेंट मोमेंट. यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? यस. हमें ऐसा लग रहा है हम प्रेजेंट मोमेंट में हैं, हम एक्चुअली प्रेजेंट मोमेंट में नहीं है. अगर आप प्रेजेंट मोमेंट में हो तो आसपास क्या हो रहा है आपको दिखेगा भी, सुनेगा भी. पता है एक zen masters के बारे में सुना है? बुद्धिस्ट फिलॉसफीज के बारे में, बुद्धिस्ट monk के बारे में सुना है? करेक्ट. yes. तो ऐसे मैंने किसी किताब में पढ़ा था
म्यूट कर दीजिए आप खुद को, मैं समझाता हूँ। तो Okay. वैसे ही मैंने किसी किताब में पढ़ा था, बड़ी कमाल की एक्सरसाइज वो लोग करते हैं, स्पेशली विद द मंक्स, व्हाट दे डू इज, स्पेशली द ज़ेन फिलॉसफी। सो व्हाट दे डू इज, एवरीवन इज अबाउट टू मेडिटेट, हर कोई मेडिटेट कर रहा होता है, बहुत शांति से ध्यान लगा के आप मेडिटेशन के अंदर है। और मेडिटेशन एक ऐसी चीज होती है जहाँ पे 100% अवेयरनेस और कंसंट्रेशन चाहिए होती है। तो what the masters used to do at one point of time was, if I am meditating, right, and I'm constantly focusing and aware and being conscious about everything, करते 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 जब मैं उसके अंदर डूब रहा हूँ या जो भी हो रहा है, पीछे से one of my senior master will come and give a kick to me, right? इस बात को समझाने के लिए और इस बात को महसूस करवाने के लिए कि आप एक्चुअली अवेयर हैं कि नहीं है उस मोमेंट में अंदर। क्योंकि क्या होता है, बहुत बार आप मेडिटेट करते हो, आपका ध्यान कहीं और भटक जाता है, आपके थॉट्स कहीं और चले जाते हैं, आपको वो अवेयरनेस समझ में नहीं आती। ऐसे मार्शल आर्ट्स में होता है, कुंग-फू में होता है, इन सब चीजों में भी एग्जैक्टली ऐसा होता है। इफ यू आर नॉट अवेयर in that moment, if you're not in that present moment, your master will actually come and give a kick up to your backside, so that to understand that wake up। मतलब इसका ये है कि हम कहते तो हैं प्रेजेंट मोमेंट में, हम एक्चुअली प्रेजेंट मोमेंट में, क्योंकि थॉट्स हमारे डिफॉल्ट कंडीशनिंग में आ चुके हैं। थॉट्स हमारे खासकर जो लोग पास्ट में अटके पड़े हैं, उनका पास्ट ट्रॉमा चलता रहता है, जो फ्यूचर के बारे में सोचते रहते हैं वो एंटिसिपेटरी मोड में चले जाते हैं। तो हम इधर और इधर फ्लक्चुएट करते रहते हैं। क्योंकि हम इधर और इधर फ्लक्चुएट कर रहे हैं, मोमेंट में एक्चुअली है नहीं। प्रेजेंट मोमेंट का मतलब होता है कि मैं अपने सामने जो है उसको देख भी रहा हूँ, उसको सुन भी रहा हूँ, उसको महसूस भी कर रहा हूँ, जो एम्ब्रेस कर रहा हूँ हर चीज को, जो आ रहा है उसे एक्सेप्ट भी कर रहा हूँ। लेकिन हम वो कर नहीं पाते, हम सिर्फ जो हो चुका है पास्ट में उसमें अटके हुए हैं। देखो ना, एक चीज बहुत गहराई से समझो जरा। ब्रेन डज नॉट अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज एन इल्यूजन एंड व्हाट इज अ रियलिटी। इसका मतलब ये है कि 5 साल पहले जो भी आपके साथ हुआ आपकी जॉब के अंदर, वो जो ट्रॉमा आपको फेस करना पड़ा, वो उस समय की तो हकीकत थी, उस समय की रियलिटी थी। इट वाज हैपनिंग टू यू एट दैट मोमेंट। बट नाउ after 5 years is nothing but a story that has been created and formed in your head, a story that you have created of whatever has happened to you। बहुत बारी अक्सर ऐसा होता है कि दो लोग एक ही ट्रॉमा से गुजरते हैं, लेकिन दोनों का रिस्पॉन्स आफ्टर 5 years अलग अलग होता है जिंदगी के लिए। फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारे लोग वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ट्रॉमा से गुजरे होंगे, राइट राशि जी? बहुत सारे लोग जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ट्रॉमा से गुजरे हैं, सबका रिएक्शन आफ्टर 5 years इज वेरी डिफरेंट टू देयर लाइफ। Some people must be reliving it again and again, and some people must have forgotten, or some people must have moved ahead in their life in some form or the other, or some people must have taken it into a different direction and thought that this was meant to happen, and maybe there was something hidden, maybe a lesson was hidden, and let me just learn it and move forward। Everyone creates their own stories the way you want to create it। और ये स्टोरीज हम कैसे क्रिएट करते हैं ये भी बताता हूँ। हम स्टोरीज हमारी डिफॉल्ट कंडीशनिंग में क्रिएट होती है। मतलब हर कंप्यूटर, हर सॉफ्टवेयर का एक डिफॉल्ट मोड होता है जिसमें वो हमेशा चला जाता है, करेक्ट? ऐसे होता ना, जैसे हर आईफोन की फैक्ट्री सेटिंग्स होती हैं कि अगर ऊपर नीचे होगा तो हम वापस वहीं चले जाएंगे। एक डिफॉल्ट मोड हर सॉफ्टवेयर को होता है, हमारी भी है, इसका भी एक सॉफ्टवेयर है डिफॉल्ट मोड पे। अब वो डिफॉल्ट मोड में ना थोड़ी गड़बड़ हो गई है। वो डिफॉल्ट मोड हमेशा सेल्फ विक्टिमाइजेशन, सेल्फ डाउट और सेल्फ पिटी में चला जाता है। और अगर वो डिफॉल्ट मोड हाइपोथेटिकली स्ट्रेंथ में जाए, विल पावर में जाए, या फाइटिंग स्पिरिट में जाए, या स्पोर्ट्समैन स्पिरिट में जाए, या आगे बढ़ने के लिए पॉजिटिविटी में जाए, या ऑप्टिमिज्म में जाए, तो क्या होगा, एक डायरेक्शन मिल जाती है हर थॉट को। There's nothing called a positive thought, there's nothing called a negative thought। A thought is a thought। The direction that you give it to the thought will culminate what the thought will be, whether it will be positive or negative। मतलब अगर आपके साथ कुछ बुरा घटित हुआ है, फॉर एग्जाम्पल अगर किसी का, चलो बहुत सिंपल एग्जाम्पल है, बहुत सारे लोगों के रिलेशनशिप्स यहाँ पे हुए होंगे, करेक्ट? कुछ लोग जब उनका रिश्ता टूटता है तो बहुत नाखुश हो जाते हैं, बहुत बुरा महसूस करते हैं, हार्ट ब्रेक हो जाता है, सेपरेशन होता है, दे फील सैड एंड ग्रीफ एंड समटाइम्स गो इनटू एंजाइटी एंड डिप्रेशन। बट देयर आर सम पीपल, जब उनका ब्रेकअप होता है तो वो खुश हो जाते हैं, दे लाइक अच्छा है कि रिलेशनशिप खत्म हुआ, नाउ आई कैन लिव माय लाइफ फ्रीली, इंडिपेंडेंटली एंड लिबरेटेड, करेक्ट?
two people in the same situation. The only thing is how you give a direction to the thought will determine your life. आपने दिशा क्या दी उस थॉट को, जो आपके साथ हुआ उसको क्या दिशा दी, वो इम्पोर्टेंट है। सो अगर आपने सही दिशा दे दी तो आप जिंदगी की सही दिशा में चले गए, अगर आपने गलत दिशा दे दी तो आप सेल्फ विक्टिमाइजेशन, सेल्फ डाउट, सेल्फ पिटी का जो मोड है ना हमारा डिफॉल्ट, उसमें चले जाते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, गलती उसकी थी, गलती मेरी थी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसने ऐसा क्यों किया। सारे के सारे क्वेश्चन आते रहते हैं एंड एवरी टाइम वी कीप गेटिंग स्टक इन द पास्ट। एंड हम इस मोमेंट में बैठ के पास्ट के बारे में सोच रहे हैं तो हम एक्चुअली प्रेजेंट मोमेंट में नहीं है, हम पास्ट में ही है। करेक्ट। हम बस इस मोमेंट में सोच रहे हैं, इस मोमेंट को जी नहीं रहे हैं। मैं कह रहा हूं इस मोमेंट को जीने के लिए, इस मोमेंट को जीने के लिए पास्ट का बैगेज छोड़ना पड़ेगा। मतलब जब आप दौड़ते हैं तो क्या आप 100 किलो का बैगेज लेके दौड़ते हैं बोरी, या फिर जितना लाइट वेट हो उतना दौड़ेंगे तो उतना इजी रहेगा। तो अगर हम सारे बैगेजेस जो पास्ट के उसको ढो के हम चलने की कोशिश करेंगे तो क्या हम चल पाएंगे, क्या हम कोई रेस जीत पाएंगे, या हम इन पास में ही अटकते रहेंगे, या पीछे ही देखते रहेंगे कि किसने बोरी इतनी बोझ भरी डाल दी हमारे सर के ऊपर। करेक्ट। तो इस बात को समझना बड़ा जरूरी है कि बिकॉज द ब्रेन डज नॉट अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन रियलिटी एंड इल्यूजन। ब्रेन क्या करता है ना, ये वैसे ही उसको परसीव करता है जैसे अभी हो रहा है आपके साथ दोबारा। मतलब सपना देखा है कभी जिंदगी में? सपने देखे होंगे तो कभी बुरा सपना भी आया होगा। चलो सपना भी छोड़ देते हैं, सिंपल और सिंपल करते हैं। मूवी देखी है सबने? मूवीज तो देखते हो राइट? जब हम मूवी देखने के लिए जाते हैं तो जितने भी आप पैसे खर्चते हैं, 200, 250, 300 रुपए, अलग अलग शहरों में अलग अलग टिकट्स के प्राइसेस हैं। आप मूवी देखने के लिए जाते हैं, हाइपोथेटिकली आप फिल्म देखने के लिए गए, कोई भी फिल्म XYZ नाम ले दीजिए, और वहां पे आप गए, आपने पैसे दिए, अपनी फैमिली के साथ गए, आप फिल्म के थिएटर के अंदर गए, अंदर पूरा डार्क हो जाता है सब चीजें। करेक्ट। और हमें समझ में आता है कि ऊपर एक लाइट लगी हुई है और एक प्रोजेक्टर है, जिस प्रोजेक्टर के ऊपर जो है स्क्रीन है, और स्क्रीन के ऊपर एक फिल्म नजर आती है आपको। करेक्ट। इतना आपको पता है, फिर आपको फैंटा, पेप्सी, पॉपकॉर्न वगैरह लेते हैं, बैठते हैं और फिल्म देखना शुरू करते हैं। अब मुझे बताइए, आपको पता है आपने पैसे दिए हैं, आपको पता है कि ये जो दिख रहा है ये एक्चुअली में तो रियल नहीं है ना। वो जो एक्टर आपके सामने है वो तो अपने घर पे बैठा हुआ इस समय, वो आपके सामने नहीं है ना, रियलिटी में तो नहीं है, एक इल्यूजन है, एक भ्रम है, एक सपना है। लेकिन जो आपको दिख रहा है, जब आप उसको देख रहे हो अच्छे से, उसके अंदर इतना इन्वॉल्व हो जाते हो कि आप रोते भी हो, आप हंसते भी, आपको वंडरमेंट भी आता है, आपको सब कुछ महसूस होता है, आपको फियर भी होता है। एवरी इमोशन दैट यू फील इन रियल लाइफ यू एक्चुअली फील इन दैट इल्यूजन। इजंट इट ट्रू? कभी अपने आप से सवाल किया कि ऐसा क्यों होता है? एक्चुअली तो नहीं होना चाहिए, पैसे तो आपने दिए, आपको तो पता है हकीकत नहीं है, ये तो भ्रम है कि वो जो कहानी आपको दिख रही है, जिसमें वो एक्टर या किरदार है, जो इंसान है, उसके साथ पता नहीं हुआ भी है कि नहीं हुआ, और शायद ना भी हो सकता है कि डायरेक्टर की कोई इमेजिनेशन, उसने ऐसी कोई कहानी रच दी हो। करेक्ट। लेकिन आपको एग्जैक्टली सेम क्यों महसूस हो रहा है या होता है उस लम्हे पे, जैसा आपको अपनी रियल लाइफ में सारे भाव महसूस होते हैं, ऐसे सारे भाव उस थिएटर में क्यों महसूस होते हैं? पूछो अपने आप से। जबकि वो सच नहीं है, वो तो झूठ है। झूठ है कि नहीं है, इतना तो समझ में आता है कि नहीं, कि जो थिएटर में मूवी देख रहे हो इट्स एन इल्यूजन, इट्स अ भ्रम, ये झूठ है, ये हकीकत में नहीं है। ना हकीकत में ऐसा कोई किरदार है, करेक्ट, ना हकीकत में कोई ऐसा इंसान होगा। इट इज ऑलवेज said inspired by true event, then nobody can say it's a true event. It is inspired by true event, मतलब it can be imagined by the true event. उससे आप कुछ चीजें उठा सकते हो, लेकिन रचोगे तो खुद ही ना, कहानी तो खुद ही बनोगे ना, उसमें ड्रामा डालोगे, इमोशन डालोगे, कॉन्फ्लिक्ट डालोगे, सब चीजें डालोगे, जो भी डायरेक्टर डालता है। तो जब आपको पता है ये सब सच नहीं है तो फिर कैसे मान लो, तो फिर रोते क्यों? इसका मतलब ये है द ब्रेन डज नॉट अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज रियलिटी एंड व्हाट इज इल्यूजन। जैसे ही ब्रेन उसके अंदर इन्वॉल्व हो जाता है तो भूल जाता है। जैसे ही आप प्रेजेंट मोमेंट में पास्ट के अंदर इन्वॉल्व हो गए तो आप भूल गए, फिर आप उस भ्रम के अंदर हो। मतलब हम एक चक्रव्यूह बुनते हैं और उस चक्रव्यूह के अंदर डाई मार देते हैं, फिर अब जब हमने डाई मार दी है तो हमें समझ में नहीं आ रहा कि ये रियल है या ये इल्यूजन है। एक्चुअली वो इल्यूजन है, लेकिन डाइव आपने मार दी तो आपको सब रियल दिख रहा है। मतलब एक फिल्म आई थी इंसेप्शन, लियोनार्डो डिकैप्रियो की, क्रिस्टोफर नोलन है डायरेक्टेड द फिल्म। अगर आपने देखी हो, नहीं तो देखना, सपनों के ऊपर है वो फिल्म, कि लियोनार्डो डिकैप्रियो सपनों के अंदर जाता है कुछ आइडिया प्लांट करने के लिए।
लेकिन खतरनाक बात यह है कि जब आप सपनों के अंदर कूदी लगा लेते हो तो आप भूल जाते हो कि एक्चुअली सपना है या रियल है। हम भी एक्चुअली ऐसे ही करते हैं, जब पास्ट में डूब जाते हैं तो क्या होता है, हमें अपना पास्ट सत्य महसूस होना शुरू हो जाता है। वही ब्रेन वैसे ही फंक्शन करता है जैसे 5 साल पहले उस ट्रॉमा से गुजरा था। वो ट्रॉमा आज भी उसी पेन, उसी इंटेंसिटी से हमें महसूस होता है। एंड देन वी कीप गेटिंग स्टक and then we forget that actually we are in the present moment. This had happened, this is done and dusted with. At the moment there's no one who is causing me trauma. At the moment there's no one close to me who is creating any kind of physical, emotional, social, spiritual molestation to me. No one is doing anything. I am in a secured environment, sitting in my home, nothing is happening to me, but all I'm doing is recreating all the memories back again, rewinding and playbacking the tape which has happened to me earlier in my life, और उसमें मैं अटक रहा हूँ। I am the creator. सारे इमोशंस आपके अंदर महसूस हो रहे हैं, वो ट्रिगर भी आप ही कर रहे हो। अच्छा, एक और डीपेस्ट लेयर है इसके, हम ट्रिगर क्यों करते हैं? हमारी ना थोड़ी सी एक आदत बन चुकी है, हम ना पेन को नहीं, हम इंटेंसिटी को महसूस करना चाहते हैं। क्योंकि हम इंटेंसिटी को महसूस करना चाहते हैं और इंटेंसिटी के क्लोजेस्ट पॉइंट जो है वो पेन होती है, तो हम खुद ही जानबूझ के इस पेन को ट्रिगर करते हैं। अनफॉर्चुनेटली हम खुद ही कर रहे हैं, बैठ के हम खुद ही सोचते हैं उसके बारे में। कोई आता नहीं हमें सोचवाने के लिए कि चलो इसके बारे में सोचो 5 साल पहले क्या हुआ था। आजकल वो भी थोड़ा एटमॉस्फेयर हो जाता है, घर वाले या बाहर वाले या आसपास के कजन रिलेटिव जो बोलते रहते हैं, तुम्हें पता नहीं तुमने 3 साल पहले क्या किया था, तुमने ऐसा कर दिया था, तुमने वैसा कर दिया था, तुम लाइफ खराब कर दोगे। दे कीप आल्सो गिविंग यू द गिल्ट मोड एंड द रिग्रेट मोड। वो एक अलग चीज है, वो एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस ट्रिगरिंग यू, उसको साइड में रख के आप ये सोचो एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस को तो छोड़ो, इंटरनली व्हाई यू ट्रिगरिंग योरसेल्फ, गोइंग बैक टू द पास्ट। इट्स डन, इट्स डस्टेड विद, हो गया। उसमें कुछ गलत हुआ, उसमें कुछ सही हुआ, कुछ आपकी गलतियां, कुछ सामने वाले की गलतियां, आपने क्या सीखा, उसको डिसॉल्व करने का बस एक ही तरीका है, learn the lesson, not the trauma, learn the lesson from the incident and move forward. Do not keep getting stuck with the incident. हम वाक्यों में अटक जाते हैं, इंसिडेंट में अटक जाते हैं, हम भूल जाते हैं कि इंसिडेंट इंपॉर्टेंट नहीं है। इंसिडेंट तो होते रहेंगे जिंदगी के अंदर, वो एक्सपीरियंस के लिए। उस एक्सपीरियंस से क्या मिलता है? तजुर्बा मिलता है। तजुर्बे से क्या मिलता है? लेसन मिलता है लाइफ का, कि ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ, वो ट्रॉमा आखिर मुझे क्यों बर्दाश्त करना पड़ा, व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड इट, मुझे ही क्यों करना पड़ा। बहुत सारे और भी पार्टिसिपेंट्स थे, बहुत सारे और कॉर्पोरेट जॉब में काम कर रहे थे, बहुत सारे और कोलीग्स थे, वो सब तो नहीं बर्दाश्त कर रहे थे। इसका मतलब अगर ट्रॉमा तो सबको होना चाहिए, अगर बॉस खराब है तो सबके लिए खराब है ना, करेक्ट? 2 के लिए सही है, 4 के लिए खराब क्यों है? इसका मतलब 4 कुछ नहीं कर रहे जो बॉस चाह रहा है, और 2 वो कर रहे हैं जो बॉस चाह रहा है। अब वो क्या है, वो बड़ा सब्जेक्टिव है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। आई एम ट्राइंग टू से देयर इज नो यूनिवर्सल रूल, दैट बेसिकली मींस यू नीड टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ योर लाइफ। द मोमेंट यू चेंज द डायरेक्शन, योर लाइफ विल बिगिन टू चेंज। क्लियर? राशि जी, क्लियर है आपको? यस सर, मुझे एक और क्वेश्चन है, इसी में है वो कि अभी जब रुक जाओ, अभी रुक जाओ, किसी वो और को भी सवाल पूछने दो, फिर वापस आते हैं आपके ठीक है, पास। ठीक है, ओके ओके। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्टिसिपेंट, रानी डूम जी। हाँ जी, Hello, sir. हाय। First of all, I'm a big admirer of yours. Like, you are doing a really great job by helping people and like all over the world. So, thank you for that, because it's थैंक यू। very hard for people to, tackle the situations, but you are helping them by your videos. So, thank you so much. So, my question was that, so how do we control overthinking? Like, it's a huge problem these days. Like our mind gets stuck in the things which are not in real. It's just our overthinking which causes us like so much different kind of things and all. So how do we tackle that? Like we know okay, it's not the truth, but also we keep on thinking the same things and like different scenarios. So what to do with that? ओके। ओवर थिंकिंग कितने लोगों को ओवर थिंकिंग का प्रॉब्लम है? हाथ खड़ा करें जरा।
सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं। अच्छा। ऑलमोस्ट सभी को है। ओके, आई अंडरस्टैंड दैट। म्यूट योरसेल्फ ताकि आवाज सब तक पहुंच सके। हाँ, क्या ही सोचते हैं इतना जिंदगी के बारे में। सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं। चलो छोटी छोटी चीजें समझते हैं। सोचने से कुछ होता है कि नहीं होता, पहले बताओ। या हमारी अगेन वही है, डिफॉल्ट कंडीशनिंग हो चुकी है, हमें आदत पड़ गई है। हमारे अंदर मुझे लगता है डर बहुत सारे हैं, इन डरों की वजह से सोचते रहते हैं। जिसमें डर नहीं होता वो सोचता नहीं है ना। जिसमें डर नहीं होता वो देखता है ये खाई है, इसमें जंप करना, जंप करके निकल जाता है आगे। जो डरता है वो सोचता रहता है, चाहे 2 फुट की खाई क्यों ना हो, कि पता नहीं चलूं ना करूं, गिर ना जाऊंगा, गिर जाऊंगा तो फ्रैक्चर हो जाएगा, फ्रैक्चर होगा तो मम्मी पापा क्या कहेंगे, भाई बहन क्या कहेगा, ये क्या कहेंगे, वो क्या कहेंगे। कहानियों के पुल बनाते रहते हैं। हमें ना कहानियां बनाने की आदत पड़ गई, हम उन कहानियों में उलझते चले जा रहे हैं। और ये कहानियां क्योंकि बचपन से सुनी है, टीवी पे भी, दादी माँ, नानी माँ, फिल्मों में, टेलीविजन में, मिथोलॉजी में, हिस्ट्री में, ये कहानियां हैं सबके सब। पता नहीं कितना सत्य है, किसी को क्या पता। हम्म, आपने तो कहानी सुनी है किसी से कि महात्मा गांधी जी ऐसे थे, नहीं थे, या लाला लाजपत राय या सरदार पटेल या जवाहरलाल नेहरू कैसे थे, किसी को क्या पता। वो तो शायद उनको पता होगा जो फिर भी उनसे रूबरू हुए हैं, बाकी सब तो हमने कहानियां सुनी। करेक्ट, किसी के मुंह की कही हुई कहानी। अब कहानी में क्या होता है, समझो इस बात को, क्योंकि इस ब्रेन को आदत है कहानियां बनाने की। कहानियों में झूठ होता है। कहानियों में झूठ कैसे होता है? किसी ने चाइनीज विस्पर नाम की गेम खेली है कभी? चाइनीज विस्पर, उसमें क्या होता है, 4 5 6 लोग एक सर्कल में बैठ जाते हैं। एक इंसिडेंट, एक इंसान या एक लाइन या 2 लाइन एक इंसान दूसरे के कान में कहता है, ठीक है। फिर दूसरा क्या करता है, उसको वही बात तीसरे के कान में कहनी है। करेक्ट। लेकिन होता क्या, जब पहला दूसरे के कान में कहता है, किसी ने मेरे कान में कोई बात की, क्योंकि हमें कहानी बनाने की आदत है, ब्रेन वर्क्स ऑन अ डिफॉल्ट मोड। जो उसने कहा हम सुनते तो है नहीं ध्यान से, तो उसने कुछ कहा, हमने उसका एक पर्सपेक्टिव बना लिया, और हमने सामने वाले को जो बात, उसने कुछ शब्द छूट गए, कुछ लाइन छूट गई, हमने तोड़ मरोड़ दिया और वो बात आगे पहुंच जाती है। फिर एंड में जो सर्कल तक, एंड तक बात पहुंचती, तो सबको समझ में आता कि बात कुछ और थी, लेकिन बात को बहुत ही तोड़ मरोड़ के एंड में कुछ और मिलती है। इसका मतलब ये है कि वी कीप चेंजिंग द डायरेक्शंस ऑफ व्हाटएवर स्टोरीज वी कीप क्रिएटिंग। अब ये कहानियां बुनते रहते हैं, तो कॉन्स्टेंटली उसी के अंदर सारे के सारे डर है, उसी के अंदर झूठ, और हम फंसते चले जा रहे हैं। हमें अगर ओवर थिंकिंग से बाहर निकलना है, तो जो, अगर सिंपलेस्ट चीज कहूँ तो, अगर बहुत सिंपल फॉर्मूला की तरह अप्लाई करना चाहते तो ये कर सकते हैं। पहला, कि ओवर थिंकिंग या तो पास्ट की वजह से होती है, वो फ्यूचर की वजह से होती है। फ्यूचर के डर होते हैं कि कल पता नहीं क्या होगा, नहीं होगा, जॉब लगेगी नहीं लगेगी, कोविड आ जाएगा नहीं आएगा, फिर ये ना हो जाए, फिर वो ना हो जाए, तो डरते रहते हैं। दूसरा है, पास्ट में कुछ हो चुका है, जैसे अभी किसने कहा था, राशि जी ने, कि मेंटल ट्रॉमा है, कुछ इमोशनली आपके साथ हुआ है, कुछ गलत हुआ है, कोई सेपरेशन, कोई हार्ट ब्रेक, किसी की मृत्यु, कोई जॉब छूट गई, कोई फाइनेंशियल लॉस है, कोई पार्टनरशिप लॉस है, तो हम उस चक्कर में फंस जाते हैं और उसको सोचते रहते हैं। तो अगर सिंपल शब्दों में करना है, तो पास्ट के बारे में तो इतना समझना जरूरी है कि जो हो चुका है उसे कोई बदल नहीं सकता। तो आपको ये खुद को कहना पड़ता है कि वट एवर इज डन, इट इज डस्टेड विद, नाउ नथिंग कैन बी डन, द ओनली थिंग दैट कैन बी डन इज, जो हो चुका है, learn the lesson, apply the lesson in the present moment and move forward. Because everything that is happening in your life is happening for a reason. The reason is to learn the lesson. Life wants to teach you through some incidents and experiences of yours. If life wants to teach you, are you learning the lesson? So whatever has happened, nobody can change it. The only thing that I can do from here is, there was a lesson hidden, a moral of the story. Let's understand the moral of the story. Let's learn it. Let's implement it today or tomorrow, whenever the time comes, and move forward. फ्यूचर के बारे में जो हम डरों की बात करते हैं, जो घबराहटें हमें हैं, जो एंटिसिपेशन हमारे दिमाग में है कि कल क्या होगा, कल क्या होगा, देखो कल क्या होगा किसी को नहीं पता। अचानक से कोविड आ गया, अचानक से लोगों की नौकरियां चले गई, अचानक से लोगों की मृत्यु हो गई, किसी को क्या पता कि कल क्या होने वाला है। कल हमेशा अनप्रिडिक्टेबल रहेगा, और इसकी खूबसूरती भी यही है।
अगर रोज एग्जैक्ट टाइम पे सनराइज हो, एग्जैक्ट टाइम पे सनसेट हो, तो आप भी बोर हो जाएंगे। लेकिन आपको कभी पता नहीं लगता कि कौन से टाइम पे सनराइज होगा और कौन से टाइम पे सनसेट होगा। Every day it keeps changing. Life's most beautiful part is in its unpredictability. कि कल क्या होगा। हम ना हर चीज को कंट्रोल करना चाहते हैं, हम डरते बहुत ज्यादा हैं, इसलिए कंट्रोल करना चाहते हैं, कंट्रोल फ्रीक हो गए हैं कि अगर एक रास्ते से जाना तो जीवन में उसी रास्ते से जाना, दूसरा रास्ता कभी ट्राई ही नहीं किया, दूसरी गली में देखा ही नहीं, पता नहीं शायद वहां से कोई शॉर्टकट हो सकता है वहां से कोई रास्ता निकल रहा हो जीवन का, लेकिन हम डरते इतने ज्यादा हैं कि उसमें अटकते चले जाते हैं। जब डरते रहेंगे तो दिमाग को क्या है, दिमाग जितना डरेगा उतना ज्यादा सोचेगा। सोचते क्या हो, सोचो जरा डीपेस्ट रूट में जाके देखो, आपका डर ही तो है जो आपको सचवा रहा है कि होगा नहीं होगा, क्या होगा, ये छोड़ के चला जाएगा, उसके साथ क्या होगा, ये ठीक नहीं है, वो सही नहीं है, मम्मी के बिना क्या होगा, पापा के बिना क्या होगा, जॉब के बिना क्या होगा, ये सब चीजें सोचते तो रहते हो। करेक्ट। और वो डर आपको अंदर ही अंदर खाते रहते हैं, वो डर कहानियां भी बनाते रहते हैं, फिर उसके चक्कर में फंस जाते हो। सो फ्यूचर के बारे में अगर सोच रहे हो, भविष्य के बारे में बार बार कॉन्स्टेंटली दिमाग आ रहा है, तो उसको कहो लिसन, वी विल क्रॉस द ब्रिज वंस वी अराइव। मतलब जब होगा तब की तब देखेंगे। खुद को पकड़ना पड़ता है, खुद की कल्पनाओं को पकड़ना पड़ता है कि अच्छा 2 दिन बाद ये करना है तो ये कपड़े पहनने, नहीं 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 ये कपड़े नहीं पहनने हैं। उस मोमेंट पे जो आपकी इंस्टिंक्ट आएगी, जो आपका मन करेगा, वो कपड़े पहन के जाना पार्टी में, ना कि 3 दिन पहले से डिसाइड करो कि 3 दिन बाद ये कपड़े पहनने हैं पार्टी में। हम अक्सर ये करते हैं। कोई भी इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है, पहले से डिसीजन हो जाते हैं 1 हफ्ते पहले से ही कि आज ये करना है, कल वो करेंगे, परसों ऐसा करेंगे, तरसों वैसा करेंगे। सब दिमाग की बुनी कहानी है। अभी कहानियां क्या है, आपकी थिंकिंग ही तो है एट द एंड ऑफ द डे। फिर वो थिंकिंग जब लूप में आ जाती है तो ओवर थिंकिंग हो जाती है। अब जब एक चीज आप सोच रहे हो, अपने इशारे पे सोच रहे हो तब तक ठीक है, जैसे वो अपना इशारा खत्म हो जाता है, वो अपने डिफॉल्ट मोड पे चला जाता है और वैसे लूप बन जाता है और वैसे मोटर की तरह चलता रहता है आपके दिमाग में, तो आपका दिमाग खत्म हो जाता है, आपको समझ में नहीं आता ये क्या हो रहा है, क्यों दिमाग में बार बार परसों की पार्टी के कपड़े आ रहे हैं, यार हो गया ना, कपड़े देख लेंगे ना, पहन लेंगे ना जो पहनना है। Why do you keep thinking about it again and again on a default mode? इट्स लाइक आपने मोटर चालू की उसके बाद मोटर टेक्स ओवर और वो रोटेटर पंप होता है ना, वो अपने आप टेक ओवर कर देता है, फिर वो रुकता नहीं है। नहीं, तो चालू ही मत करो। अगर रोकना नहीं आता, या तो रोकना आना चाहिए, करेक्ट, या तो उसको डिसॉल्व करना आना चाहिए, मेडिटेट करके रोको या कैसे भी करके, या पढ़ के रोको, समझ के रोको, ऑब्जर्व करके रोको, कुछ भी करो। अगर रोकना नहीं आता तो चालू मत करो, वेट करते हैं, विल सी, विल क्रॉस द ब्रिज वंस वी अराइव। नए कपड़े तो जितने कपड़े हैं उसमें से जो अच्छा लगेगा पहन के चले जाएंगे। लेकिन हमारा दिमाग क्या कहता है, अच्छा ये पहनेंगे तो वो क्या सोचेगा, उसने भी व्हाइट पहना है, उसको पता मेरे पास व्हाइट अच्छा नहीं लगता, मुझे ब्लैक अच्छा लगता है। ये सारी कहानियां बनती रहेंगी दिमाग में कॉन्स्टेंटली। और फिर अभी पार्टी में गए भी नहीं हो, 3 दिन पहले से ये सोच रहे हो, पता लगा 3 दिन के बाद पार्टी कैंसिल हो गई। समथिंग हैपेंड, जिसके घर में पार्टी थी उस टाइम 15 मिनट पहले फोन किया कि सॉरी, सम इमरजेंसी हैज हैपेंड सो डोंट करो। आपने 3 दिन आपने बर्दाश्त कर लिए, सोच के अपने आप को खत्म कर लिया, खर्च कर लिया। 95% क्या 99% चीजें ऐसे होती हैं जीवन के अंदर, अगर नहीं तो ऑब्जर्व करो जीवन को, होता है कि नहीं होता। तो जब होता है तो सबक लो। सबक क्या होता है कि यार ये गलती पिछली बार की थी, पिछली बार 3 दिन तक सोचा था कि पार्टी में क्या पहन कर जाना है, इस बार ही नहीं सोचना, जो होगा आगे के आगे देखेंगे, पता नहीं पार्टी होगी भी कि नहीं होगी, हो सकता है आखिरी मोमेंट पे कैंसिल हो जाए। करेक्ट। मैं अपना एग्जांपल बताता हूँ। आई वाज सपोज टू अटेंड फिल्म फेयर अवार्ड्स फंक्शन एंड माय डिजाइनर इन दिल्ली हैड टू सेंड अ टक्सीडो टू मी। और मुझे याद है हमारा, आई हैड टू लीव होम बाय 6:15 और उन्होंने 2 दिन पहले कोरियर किया था लेकिन कोरियर नहीं पहुंचा। तो 12 बज के दोपहर के, तो आई कॉल्ड देम अप एंड ही सेड कि मैंने बोल दिया है, somebody is going to deliver in half an hour। करते करते फिर मैंने 2-3 घंटे के बाद दोबारा, आई थिंक आई स्पोक टू देम एंड आई आस्क्ड हिम, आई सेड कि वो आया नहीं है अभी तक। तो ही सेड वो निकल चुका है, रास्ते में है, पहुंचेगा किसी भी वक्त। तो फाइनली फिर 5-6 बजे के बाद मैंने छोड़ दिया, आई स्टॉप्ड कॉलिंग, आई सेड देयर इज नो पॉइंट, आई सेड अगर होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो व्हाटएवर इज देयर इन योर कबर्ड यू विल वेयर एंड गो, सिंपल। बट होता क्या है, इसके बारे में सोच सोच के या 25 फोन करके या खुद को परेशान करके या सामने वाले को परेशान करके एक्चुअली कुछ होगा नहीं, हम यही तो करते हैं। बोलो।
यही तो करते हैं, छोटा सा एग्जाम्पल है, बट दिस एग्जैक्टली हैपेंस इन रियल लाइफ। ये छोटी छोटी चीजें जीवन में होती रहती हैं। आपको बस इतना समझना है कि इस चक्र में फंसना नहीं है। हम फंसते चले जाते हैं कॉन्स्टेंटली। ओके, सो क्रॉस द ब्रिज वंस यू अराइव। तब तक चिल करो, लेट लाइफ कम टू यू। ओके, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। हु वांट्स टू आस्क? मनाली डकारे, आप कुछ सवाल पूछना चाहते हैं? प्लीज स्विच ऑन योर वीडियो। Okay, no problem. Let's move on to Simran Gupta. Hello. Yeah. हाँ जी, Manali ji, hold on. Please keep the video on. We are speaking to Simran, then we come back to you. Okay? Just Yeah, give me sure, some sure. time. Simran, हाँ जी, Simran Gupta. Hi, sir. So thank you so much for helping us a lot. Also, sir, am I audible? You're most welcome. Yes, you are. Yeah. So I am a student right now, and मेरी सबसे बड़ी problem यही होती है कि I know कि ये चीज़ correct है। जब मुझे पता होता है कि एक specific time पे कि ये सब सही है, सब लाइन में चल रहा है, बट एक मोमेंट आता है ना जहाँ पे सब मालूम हो के भी आई गेट स्टक, लाइक ये ऐसे हिल ही जाता है, लाइक आई नो व्हाट इज करेक्ट बट आई एम नॉट एबल टू डू व्हाट इज करेक्ट। Okay, I understand your point. आप कुछ कंप्लीट करना चाहते हैं कि मैं आगे बताऊं? सर वही मतलब क्या होता है ना कि जब ऐसे एक सिचुएशन बताती हूँ जब लाइक देयर इज अ पॉइंट वेयर समवन शाउट्स ऑन मी एंड आई नो कि चल ठीक है, सामने वाले की बैटरी डाउन है, सामने वाले का कुछ सिचुएशन होगा। ये तब का सिचुएशन जब मुझे सब समझ आ जाता है कि चल ठीक है, सामने वाले का सिचुएशन ऐसा है, इसीलिए वो ऐसे रिएक्ट कर रहा है, इट्स फाइन। वो मेरा एक प्रॉपर ये हो जाता है। बट समटाइम्स क्या होता है, यही सिचुएशन अगर होती है और मुझे सब मालूम होता है, फिर भी ना मैं उल्टा कर बैठती हूँ और फिर मुझे मतलब कंट्रोल नहीं रहता माइंड पे कि जब मुझे पता है तो मैंने वो चीज करी क्यों नहीं। अब सुनिए जरा, बात सही है, मैं समझ रहा हूँ। आई एम श्योर काफी सारे लोग इस सिचुएशन से गुजर रहे होंगे। देखो, बात वहीं पर है, थोड़ा सा ध्यान से समझो। जब तक हम इस बात के लिए अवेयर हैं कि सामने वाले ने हम पर शाउट किया हाइपोथेटिकली, या कुछ बुरा भला बोला या कुछ भी हुआ, इस बात के लिए अवेयर है, हम खुद को कंट्रोल भी कर रहे हैं, खुद को समझ भी रहे हैं। हमें पता है कि अब क्या है, इस मोमेंट में मैं जागृत हूँ। जब मैं जागृत हूँ तो मैं देख रहा हूँ कि इसकी ये प्रॉब्लम है, ये ऑफिस थक गया है, इसको ऑफिस में फ्रस्ट्रेशन हो गया, इसको ये हुआ, एग्जाम्पल्स के तौर पर, करेक्ट, इसकी वजह से शाउट कर रहा है, बट एक्चुअली उसका इंटेंट ये नहीं है शाउट करने का या स्क्रीम करने का, करेक्ट। जब तक मैं वेकिंग अप स्टेट में हूँ, जब तक मैं जागृत हूँ, तो मुझे दिख रहा है, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, इट्स नॉट अफेक्टिंग मी। बट द मोमेंट मैं वेकिंग अप स्टेट से स्लीप स्टेट में चला जाता हूँ, मतलब मेरी अनअवेयरनेस शुरू हो जाती है, मैं अवेयरनेस छोड़ देता हूँ, मैं जागरूकता छोड़ देता हूँ, तो साला मुझे शाउट करता है या स्क्रीम करता है, तो मेरा जो डिफॉल्ट मोड है अनअवेयरनेस का, वो वापस आ जाता है। और डिफॉल्ट मोड क्या है कि किसी ने कहा तो आई विल रिएक्ट, किसी ने कहा मैं भी उल्टा जवाब दूंगा या दूंगी, या मैं उल्टा कुछ बोलूंगा या बोलूंगी, या फिर मैं उसके लिए कुछ एक्शन लूंगी। ये क्या है, फिर अनअवेयरनेस में होता है। तो आइडियली तो बात यही होती है कि हमें कहते तो यही और समझना भी यही है कि हमें 24/7 365 डेज एवरी मोमेंट अवेयरनेस में जीवन बिताना है। मतलब अब ये अवेयरनेस क्यों जरूरी है बच्चों? ये अवेयरनेस सिर्फ जरूरी है सेल्फ ग्रोथ के लिए। सिमरन जी, ये जो अवेयरनेस हम रखते हैं ना, ये इसलिए रख रहे हैं ताकि हम ग्रो कर पाए, ताकि हम किसी के हाथ की कठपुतली या चाबी ना बने, कि कोई आए और हम पे चिल्ला के चला जाए और उसके बाद हम उस पर चीखें, चिल्लाएं, मारपीट करें, वायलेंस करें, कुछ भी करें, करेक्ट। तो इसका मतलब यह है कि कोई कभी भी आके कुछ भी ट्रिगर करके चला जाएगा, हमारी चाबी एक कठपुतली की तरह है, वो चाबी लगाएगा और हम कैसे भी रिएक्ट करेंगे। आइडली कंट्रोल हमारे हाथ में होना चाहिए। बॉडी हमारी है, जबान हमारी है, शब्द हमारे हैं, सेंटेंसेस हमारे हैं, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है ये भी हमारा ही है, हमारे हाथ में है, करेक्ट। ये हाथ या पैर जब आप चलाते हो तो अपने हिसाब से चलाते हो ना, ऐसे इधर उधर तो नहीं चलते ना जब चलते हो, करेक्ट। तो आपकी जबान भी आपके कंट्रोल में होने चाहिए ना, आपके शब्द भी आपके कंट्रोल में होने चाहिए, आपके इमोशंस भी आपके कंट्रोल में होने चाहिए। कोई आए और ट्रिगर करके चला जाए तो फिर आप तो कठपुतली बनते चले जाओगे।
तो क्या करना है, तो इसलिए थोड़ी सी अवेयरनेस बढ़ानी पड़ती है। अब होता है क्या, बीच बीच में हम स्लिप हो जाते हैं, करेक्ट। स्लिप होने में कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा फिसल जाते हैं, हम चल रहे होते हैं, चलते चलते फिसल जाते हैं, गिर जाते हैं। फिसलने में कोई दिक्कत नहीं, गिरने में कोई दिक्कत, लेकिन उठना दोबारा है। मतलब किसी ने ट्रिगर किया, आप कुछ और जहन में थे, कुछ और दिमाग चल रहा था, थोड़ा अनअवेयर स्टेट में थे, तो आपने ट्रिगर करके कुछ बोल दिया, सब चीजें हो गई। कम बैक टू योर नेचुरल स्टेट, कम बैक टू द थिंग कि अगली बार और ट्राई करेंगे बेहतर, राइट। तो सोने और जागने का मतलब क्या होता है, अगर मैं गलती से, जैसे मैं गाड़ी ड्राइव कर रहा हूँ और मैं जाग रहा हूँ, रात के 3 बज रहे हैं और अचानक से मेरी आंख लग जाती है, तो मैं सो जाता हूँ, करेक्ट। लेकिन जैसी आंख खुलती है दोबारा, तो मुझे याद आ जाता है ना कि अब सोना नहीं है, अब जागृत होना है। अगर मैं जागा नहीं तो एक्सीडेंट हो जाएगा। तो ये लगा रहता है, ये हर इंसान की जिंदगी में होता है। एवरीवन गोज थ्रू, समटाइम्स यू स्लिप बाय। व्हेन यू स्लिप बाय, बिगेस्ट एग्जांपल इज विल स्मिथ। हम सभी को पता है क्या हुआ, राइट। ही इज अ वेरी अवेयर, काफी इवॉल्व है वो, बट हो सकता है एट वन पॉइंट ऑफ टाइम यू स्लिप बाय। बट यू स्लिप बाय, बट द पॉइंट इज, even after slipping, the point is कि आप दोबारा ऐसा ना करें, कि दोबारा जागृत होने का प्रयास करें, कि अब दोबारा होगा तो दोबारा नहीं करना। बस इतना ही सिंपल है। ओके, सो कीप ट्राइंग। Also, sir, please can you suggest me some books because I love reading books. I will at the end of the session I will tell you some books. Okay, moving on to next, स्नेहल, आपका सवाल है कुछ, स्नेहल किनेकर। हाँ जी। Sir, it's okay even if you call me Snehal. That's okay. It's difficult to. No, it's Sir, okay. It's perfectly fine. बोलिए। Sir, first of all, belated happy birthday to you. Thank you so much. तो माय सवाल इज लाइक, जब हम कुछ अच्छा करने जाते हैं, फिर भी उसमें से लोग कुछ ना कुछ गलतियां ढूंढ ही देते हैं और फिर हमसे बोलते हैं कि नहीं तुमने ये ठीक नहीं किया, वो ठीक नहीं किया। और फिर भी अगर वो हमारे घर के लोग होंगे तो और उस पर इम्पैक्ट पड़ जाता है कि लाइक नहीं अरे घर के लोग ही बोल रहे हैं तो बाहर के लोगों को क्या बोले हम, ऐसे हो जाता है। Okay. चलो हम सबको साइड में रख देते हैं 2 मिनट के लिए, घर वालों को, बाहर वालों को, हम खुद पे आ जाते हैं। मुझे बताइए कि जब हम किसी चीज को देखते हैं, हाइपोथेटिकली हमने कोई पेंट देखी, करेक्ट। जैसे हम कोई पेंटिंग देखते हैं स्नेहल, तो क्या हम उस पेंटिंग की फर्स्ट इंस्टेंट में, चाहे वो कैसे भी हो, उसकी तारीफ करते हैं, उसमें से कुछ अच्छा खोजते हैं, या उसकी कमियां दिखती हैं हमें? Unmute yourself. I think by nature हम ऐसा ही हो जाता है कि like we can do much better. Like I think वो एक मोटिवेशन भी है। और रुको, बड़ा अच्छा, बहुत अच्छा। यस, आपने बड़ी अच्छी बात की, बस यहीं पे रुक जाते हैं, यही सार है। We can do much better. करेक्ट, आपने कहा था ना, जब किसी चीज को देखते हैं हमें लगता है वी कैन डू मच बेटर, बस यही जर्मिनेशन ऑफ ईगो है। वी कैन डू मच बेटर, वी का मतलब है हम उससे बेहतर कर सकते हैं, यानी कि मैं उससे बेहतर कर सकता हूँ। हम तो कोई है ही नहीं, हम तो अपनी बात कर रहे हैं ना यहाँ पर। जब मैं एक पेंटिंग देखता हूँ, welcome back again. 1 second. Please switch on your videos back again. Some internet glitch happened. लड्डू, आप सभी को मेरी आवाज आ रही है? हाँ सर। Yes, sir. Okay, 1 second. Why the video is not coming? I'm trying to understand. 1 second. Yes, that. So होता क्या है, जैसे हम किसी पेंटिंग को देखते हैं हमें लगता है we can do much better, मतलब I can do much better than that। तो यहीं पे सारी के सारा खेल शुरू हो जाता है, यहीं पे ईगो आती है, क्योंकि हम ना हर चीज में इनसिक्योर महसूस करते हैं, और हमारी जो डीपेस्ट लेयर ऑफ ईगो है ना, वो हमेशा प्रूव करना चाहती है कि लिसन, आई एम बेटर देन एनीबॉडी एल्स। क्योंकि जब मैं प्रूव कर देता हूँ आई एम बेटर, तब मुझे बड़ा अच्छा महसूस होता है।
अपने बारे में किसको महसूस होता है? एक्चुअली इस ईगो को महसूस होता है, इस फॉल्स सेंस ऑफ सेल्फ को महसूस होता है जो हमारे अंदर है, जो कहीं ना कहीं हर बार ये अटेंशन ढूंढता रहता है, हर बार किसी ना किसी प्रकार से वैलिडेशन ढूंढता रहता है। तो हमारा जो डिफॉल्ट मोड है ना, वो यही चला गया है कि हर चीज में कमियां खामियां निकालें, क्योंकि कमियों और खामियों पे ईगो सरवाइव करती है। कैसे सरवाइव करती है? कुछ चीज कम है तभी तो वो चाहती है इसको भरें। एक गड्ढा, एक गड्ढे में मतलब पानी नहीं है तो ईगो चाहती है पानी भरने के लिए। अगर ऑलरेडी भरा हुआ है तो उसमें क्या भरोगे? आप समझ रहे हो कि जो चीज भरी हुई है उसमें नहीं भर सकते ना। समुद्र के अंदर थोड़ा ना लोटा डालोगे पानी का, क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं। लेकिन एक खाली गड्ढे में भरने में मजा आता है, ऐसा लगता है हमने कुछ किया है। तो ईगो को भी इसी में मजा आता है, जहां जहां वो लैक देखती है वहां पे उसको बड़ा मजा आता है उसे फिल करने में, बिकॉज वहां फिल करने के बाद उसको अपनी आइडेंटिटी महसूस होती है। इसलिए हम बहुत जल्दी लेबल करते हैं, जज करते हैं, ओपिनियन करते हैं, अरे इसको कुछ नहीं आता, अरे इसको कुछ नहीं आता, मतलब आपको ज्यादा आता है। आपको ज्यादा आता है कैसे आता है? आपने मान लिया है, समझ लिया, आपने अभी की भी नहीं है पेंटिंग, लेकिन आपने मान लिया। आपने कभी कलम भी नहीं पकड़ा होगा, आपने कभी पेंट ब्रश भी नहीं पकड़ा होगा, लेकिन आपको लगता है आप कर लोगे। कैसे कर लोगे? सोचो, एक झूठ और एक भ्रम ही तो है। करेक्ट। और अगर आप पेंटर हो भी और आप स्किलफुल हो भी, तो भी किसी और ने जो पेंटिंग बनाई है वैसे तो नहीं बना सकते ना। आप कुछ भी बनाओगे एग्जैक्टली सेम टू सेम 100% तो होगी नहीं। 100% आइडेंटिकल बनाने जाओगे भी तो भी इसमें 2-4-5% कुछ बदल ही जाएगा। तो आप वैसे तो नहीं बना सकते। फिर सामने वाले के पास भी पूरा हक है कहने का आपने कैसे कह दिया इसमें कमियां खानी है, जब आप आइडेंटिकल नहीं बना सकते, और आइडेंटिकल है तो कभी नहीं बना सकते। क्योंकि हम अपने आप को फिल करना चाहते हैं इस लैक से। तो हमारा जो डिफॉल्ट मोड है हमेशा लैक में है, कमियां खामियां में। दूसरे की कमियां देख के हमारे ईगो को फॉल्स सेंस ऑफ आइडेंटिफिकेशन मिलता है, उसको थोड़ी बढ़ोतरी मिलती है, उसको बड़ा अच्छा लगता है अपने बारे में, और इस चक्कर में हम फंस जाते हैं। इसलिए हम कमी निकालते रहते हैं। हमारा डिफॉल्ट मोड है इसमें ये नहीं है, उसमें वो कमी है, इसकी ये खामी है, इसको वो नहीं आता, इसको ये नहीं आता। वी आर वेरी क्विक टू लेबल, we are very quick to judge, we are very quick to form opinions. This is what we do about everything and everyone in this universe. And the more you form opinions and the more you're quick to judge, the more you're able to label people and tag them कि वो ऐसा है, ये वैसा है। कोई कैसा नहीं है, आप भी वैसे नहीं हो, आप भी रोज बदल जाते हो। कल तक आप किसी के बारे में पॉजिटिव थे, आज आपको उसकी परवाह नहीं है। सोचो जरा अपने ध्यान से, कल तक हाइपोथेटिकली आप रिलेशनशिप में किसी के बारे में पॉजिटिव थे, कल रात को आपका झगड़ा हो गया उससे, आज आप उसकी शक्ल दिखना नहीं चाहते। पॉजिटिवनेस बहुत दूर की बात है, आप ही एक रात में पलट जाते हो। जब हम सब पलट जाते हैं तो हम कैसे एक्सपेक्ट कर लेते हैं कि दूसरे से कि दूसरा ऐसा है, दूसरा वैसा है? आप भी तो बदल रहे हो हर लम्हा। Who are you to quickly label and judge opinion and tag somebody? हम ये क्यों करते हैं? हम एक्चुअली नहीं करते। हमारा डिफॉल्ट मोड जो ईगो का है वो करता है कॉन्स्टेंटली। उसे बड़ा मजा आता है दूसरों की कमियां खामियां ढूंढने में। जितनी कमियां ढूंढेंगे उतना खुद को बेहतर लगता है। कुछ किया हो जीवन में ना किया हो, लेकिन दूसरे की कमी ढूंढते हैं तो ऐसा लगता है वाह, नाउ आई एम सुपीरियर। भ्रम है ना। True, sir. आपने पेंटिंग बनाई नहीं है, नहीं मतलब आई एम सेइंग सबके बारे में, आपके बारे में भ्रम है ना। आपने पेंटिंग कभी बनाया नहीं, लेकिन वी स्टार्ट टू फील सुपीरियर। आई कैन डू इट, मैं तो नींद में भी बना दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हो क्या रहा है, क्योंकि डिफॉल्ट मोड कमियां और खामियों का है। अब अगर आपका डिफॉल्ट मोड कमियों खामियों का है तो आप सोचिए बाकी सबका भी तो एग्जैक्टली वैसा ही चल रहा है। उनका भी डिफॉल्ट मोड कमियों खामियों का ही है। तो वो क्या करते हैं, वो आपके काम में कमियां निकालते हैं, खामियां निकालते हैं। आप जितना मर्जी अच्छा करें, जिस दिन आपका डिफॉल्ट मोड अच्छाई की तरफ चला जाएगा, जिस दिन आपका डिफॉल्ट मोड हर चीज को अप्रिशिएट करने की तरफ चला जाएगा, सामने वाला जो आपको कह रहा है उसका भी, उसकी तरफ से भी कमियां शुरू हो जाएंगी, उसकी तरफ से वो सब चीजें खत्म होनी शुरू हो जाएगी। In the sense, once we start to change the internal reality which we have inside, that we start appreciating everything around us. What I'm saying is, everything around you will also start to change. The people around you will also start to change. The people around you will also start to appreciate more and start finding kamiyan less. ये अपने आप होगा। So try this, क्योंकि जो हम होते हैं ना वैसी रियलिटी बाहर प्रोजेक्ट होती है। जैसे हम हैं इंटरनली, डीप डाउन
वैसा ही ये ब्रह्मांड है, हमारे आसपास के लोग भी वैसे ही आते हैं, वैसे ही क्रिएट करते हैं। तो ट्राई दिस, डू द रिवर्स and experience it. Yes, thank you, sir. Thank you so much. Thank you. Okay, moving on to next. जिन जिन ने हाथ खड़े कर रखे हैं, please switch on your videos. Only then I'll be able to answer your question. Okay, Tejaswini ji. हेलो, गुड मॉर्निंग सर। Hi, सर very किसी good का क्वेश्चन good होगा तो good आप afternoon. किसी का क्वेश्चन होगा तो आप हाँ ले जी, लीजिए, बोलिए। मैं लास्ट में बोलती हूँ। ठीक है, okay, मैं लास्ट में well, let's take questions. Okay, Gatha Modi ji. So good morning, sir. Good Good afternoon, I mean. morning. So It's sir, okay. so I have seen you like performing in Shersha and in your recent series, ये जो Star Plus पे थी Chico. I have loved your bond with Vaishnavi. I have seen her dancing Thank you. and so my question to you was कि I am a student, third year Okay. student, and लाइफ में कभी ऐसा फेज आ जाता है कि आप किसी रिलेशनशिप, मतलब आई हैव नॉट बीन इन दैट सीरियस, फ्रेंडशिप की बात कर रही थी, तो आप लाइक यू केयर फॉर पीपल एंड कभी कभी क्या होता है कि द फ्रेंडशिप विच आई हैड इन दिस फ्यू टाइम, तो 2 साल की दोस्ती थी लाइक 11th स्टैंडर्ड में व्हेन दैट पर्सन केम, तो अच्छी चल रही थी और कभी कभी वो कुछ बोल भी देते थे तो हमें मतलब बुरा लगता था, आंसू भी निकलते थे। मैं मेरी बेस्ट फ्रेंड से कहती थी कि मुझे बात बुरी लग रही है, बट मैं कह नहीं पाती थी क्योंकि उनकी लाइफ में भी बहुत कुछ सीरियस इश्यूज थे जो हमें पता थे, तो उसके लिए आई यूज्ड टू अवॉइड कि नहीं करना। लेकिन पास इतने टाइम में इतना कुछ हो गया कि वी हैड अ फाइट, और फिर मैंने डिसाइड किया कि अब मुझे मतलब इनसे दूर रहना है, क्योंकि क्या होता है कि लाइक एवरी टाइम आप एक आप ट्राई कर रहे हो कि आप उनको कुछ ना कहो, बट दे टेल यू थिंग्स, वो आपको इतना कुछ बोल देते तो आप नहीं पता, आपको नहीं पता कि आप कैसे बात करें उनसे। सो माय फ्रेंड टोल्ड मी कि तुझे जो ठीक लग रहा है वो तू कर, सो आई थॉट कि उनसे दूर रहना है। शी इज एक्चुअली इन माय डिपार्टमेंट ओनली, मेजर जो मेरा सब्जेक्ट है उसमें, तो इन शी विल बी विद मी। तो मतलब कैसे, मतलब मैं करूँ कि अवॉइड कैसे करूँ, और साथ साथ में मतलब ये भी क्या होता है कि आप अवॉइड कर रहे हो तो आपका एक फिक्स एक थॉट पैटर्न बन जाता है कि ये इंसान ऐसा है, तो आपको अगर उनसे दूर रहना है तो हाउ कैन वी डू दैट? क्या आप ये कहने की कोशिश कर रहे हो कि एक रिलेशनशिप में आप थे और वो टॉक्सिक हो गया था, एंड समवेयर डाउन द लाइन इट वाज हर्टिंग यू टू मच एंड दैट्स व्हाई यू मूव्ड अपार्ट? तो अब इशू क्या है? इफ यू हैव मूव्ड अपार्ट, इफ द रिलेशनशिप वाज टॉक्सिक एंड इट वाज ट्रबलिंग यू एंड इट वाज क्रिएटिंग सम काइंड ऑफ पेन एंड सफरिंग फॉर यू एंड यू डिसाइडेड टू मूव आउट ऑफ द रिलेशनशिप, तो अब क्या इशू आ रहा है? सर द इशू इज लाइक, मैंने तो मेरी साइड से एवरीथिंग इज क्लियर कि अब मुझे मतलब बात करनी, तो वो भी खुश। क्या होता है कि जब भी हम बात ऑल द थिंग्स, पास्ट वाली थिंग्स एंड एवरीथिंग, तो वो आ रही है, एक्सेप्ट नहीं हो पा रहा, मतलब बात जो करनी है वो तो हो पा रहा, सो हाउ टू लाइक स्टे अवे फ्रॉम दैट पर्सन। बट उनको अभी ऐसा ही है, आई गॉट टू नो आई गेस 3 हफ्ते पहले आई गॉट टू नो कि शी इज स्टिल, मतलब उनको यही उम्मीद है कि वापस वी विल स्टार्ट टॉकिंग एंड एवरीथिंग, बट मुझे मतलब बात नहीं करनी, बिकॉज क्या होता है फिर इट बिकम्स टॉक्सिक एंड क्लियर कुछ हो नहीं पाता। आई अंडरस्टैंड, लेकिन मुझे बताइए एक चीज गथा जी, कि अगर आपको बात नहीं करनी है, आपने डिस्टेंस मेंटेन कर दिया, तो आप ये कह रहे हैं कि सामने वाला आपसे बात करना चाह रहा है, कॉन्स्टेंटली वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप वापस आ जाएंगे और आप नहीं चाह रहे हैं, तो आप क्या मतलब व्हाट एग्जैक्टली आर यू लुकिंग एट, कि इसको कैसे ठीक करें, या फिर हाउ यू वांट टू मूव आउट? यस, हाउ आई वांट टू मूव आउट, और मतलब मैं फिर इतनी भी उनके साथ रूड ना हो जाए, क्योंकि फिर दिस इज नॉट मी, बिकॉज आई एम अ वेरी सॉफ्ट स्पोकन पर्सन, और अगर मुझे किसी से दूर रहना है तो इट्स लाइक कि वो भी हेल्दी, मतलब एक ऐसे बहुत ही बुरी तरीके से आई डोंट वांट टू ऐसे करना है कि उनको। लेकिन मुझे बताओ, आपने उनको प्यार से समझा दिया है बात, आपने बोल दिया है कि दैट यू वांट टू मूव आउट? हो चुका था, बट शी इज स्टिल स्टक कि उनको उम्मीद है कि आई विल टॉक अगेन एंड फ्रेंडशिप विल। बट डू यू वांट टू गो बैक और नॉट? No, I don't want to go back. It's okay, let it be, let her handle things on her own. It's as simple as that. देखो बहुत सिंपल है ना, अब यहाँ पे आपने क्लियर कर दिया है, आपने बोल दिया है, आपको समझ में आ गया है that the relationship is getting toxic, और आगे बढ़ेगा तो फिर टॉक्सिक होगा, आपको अनहेल्दी लगता है, आपके लिए प्रॉब्लम है, तो at the end of the day you will have to protect yourself first.
अब ये जो बात आती है ना कि आई एम सॉफ्ट स्पोकन एंड आई एम नॉट लाइक दिस, देखो जब जुड़ाव टूटता है ना, कोई भी रिलेशनशिप हो, तो थोड़ा सा दर्द, थोड़ी सी पेन, थोड़ी सी सफरिंग तो होगी ही होगी। अब जाहिर सी बात है, बहुत कम ऐसे रिलेशनशिप्स होते हैं जहाँ पे दो लोग बहुत मेच्योरली चीजों को समझते हैं और पार्ट वेज करते हैं। 99% केसेस में वो जो जुड़ाव फ्रिक्शन क्रिएट करता है, और जब वो फ्रिक्शन क्रिएट करेगा तो सामने वाले को बुरा लगेगा ही लगेगा। एक इंसान हमेशा उस रिलेशनशिप को होल्ड ऑन करना चाहता है, हर रिश्ते में होता है, और दूसरा इंसान हमेशा हार जाना चाहता है। ऐसे होता है ना हर रिश्ते में। जब रिश्ता टूटता है तो दोनों की तरफ से नहीं टूटता, एक होता है जो पकड़ना चाहता है और दूसरा होता है जो बाहर निकलना चाहता है। तो वो पकड़ना चाहते हैं, आप बाहर निकलना चाहते हैं, आप बाहर निकलना चाहते हैं, आपको आजादी है, बाहर निकल जाओ, कोई पॉइंट नहीं है। क्योंकि अंदर वापस आओगे तो भी क्लॉस्ट्रोफोबिक ही महसूस करोगे कुछ दिनों के बाद। और ऐसे इंसान को अभी समझ में नहीं आ रहा, जो पकड़ने की कोशिश कर रहा है ना, उसको भी एक्चुअली समझ में नहीं आ रहा कि एक्चुअली रिश्ता क्लॉस्ट्रोफोबिक हो चुका है। बट क्योंकि एडिक्टिव क्लिंगिंग है, एडिक्टिव रिलेशनशिप में एडिक्टिव क्लिंगिंग हो जाती है कि मुझे चाहिए चाहिए, क्योंकि इसके बिना मैं रह नहीं पाऊंगा। करेक्ट। तो एडिक्टिव क्लिंगिंग की वजह से हम उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं। कुछ समय के बाद इन्हें भी समझ में आ जाएगा कि इट इज नॉट मेंट टू, एंड मे बी you both are not right for each other, so it's better you move out. Simple. Okay. Thank you, sir. You're most welcome. Thank you. Okay, moving on to next. और किसी का सवाल? हाँ जी, Yash, you have a question? Yash Bedarka. Yes, sir. Good afternoon, Yash, sir. I can't see you. Good afternoon. I can't see you. Can you just put the camera correctly? Hello. Yes, much better. हाँ जी, hi, बोलिए. Sir, first thing, belated happy birthday. Thank you so much, sir, for always inspiring us. Sir, एक सवाल, my question is कि जब हम life में कुछ कर, so actually we always seek guidance from gurus or from experienced people. But कभी-कभी ऐसा होता है कि जो experienced people जो होते हैं ना, वो कभी-कभी अपने हिसाब से या अपने experience से guidance देते. So in this case what we should do, मतलब खुद की सुने की उनकी सुने की, मतलब if you want to do something मैं समझ नहीं पा रहा, मतलब great in life, बोलिए. if you want to do something, do अच्छा, आप कह रहे हैं if you want to do something, okay, so if you're saying that if you want to do something great in life, तो हम अपनी सुने या दूसरों के सुने जो एक्सपीरियंस हो चुका है? आई थिंक दोनों का ही तालमेल होगा. तालमेल इसलिए होगा, दोनों का बैलेंस इसलिए होगा कि अगर आंख बंद करके किसी को सुनोगे, चाहे वो कोई भी बड़े से बड़ा इंसान हो, बड़े से बड़ा ग्रेट इंसान हो, तो भी फंस जाओगे, क्योंकि उसकी लाइफ की कंडीशंस अलग हैं, उसकी लाइफ की सर्कमस्टांसेस अलग हैं, उसके एक्सपीरियंसेस अलग हैं. हो सकता है वो आपके एक्सपीरियंसेस से मैच ना करें. करेक्ट. आपकी जिंदगी बिल्कुल अलग होगी, उनकी कंप्लीटली अलग होगी, तो वो मैच ना करें. अगर कभी कभी सिर्फ अपनी सुनते हैं तो हमें समझ में नहीं आता, क्योंकि हमारा जो कांस्टेंट कॉन्फ्लिक्ट है वो माइंड और हार्ट के बीच में है. माइंड कुछ कहता रहता है, कुछ कहानी बनाता है, हार्ट इंट्यूशन कुछ और कहना चाहती है, तो हम समझ नहीं पाते कि व्हाट इज माइंड एंड व्हाट इज हार्ट. हार्ट क्या कह रहा है या माइंड क्या कह रहा है? वी कीप गेटिंग कंफ्यूज्ड. सो दैट्स वेयर समटाइम्स वी आल्सो सीक हेल्प ऑफ पीपल who have already tread that path. कि अगर सपोज आप क्रिकेटर बनना है और आप एक क्रिकेटर का इंटरव्यू देखते हैं जिसने ऑलरेडी इंडिया के लिए खेला है, तो क्या होता है उसके एक्सपीरियंसेस से आपको थोड़ी मदद मिल जाती है, लेकिन उसके एक्सपीरियंसेस 100% आपके लिए ट्रू होंगे कि नहीं ये नहीं पता. तो हम क्या करते हैं, मिक्स मैच करते हैं थोड़ा सा. कुछ उनकी बातें सुनते हैं, उसमें से कुछ सही लगता है, उसको अपने अंदर इम्प्लीमेंट करते हैं और उस इम्प्लीमेंटेशन को देखते हैं कि हमारे लिए वर्क कर रहा है कि नहीं. इट्स लाइक पिकिंग समथिंग, applying upon to yourself and figuring it out by trial and error whether this is working for you or not. Correct? Jaise what will work for Virat Kohli will not work for MS Dhoni. They're two different people. Correct? इतना तो समझ में आता है. One is aggressive and one is calm. दोनों की personality types अलग है. तो इनके लिए कुछ अलग काम करेगा, उनके लिए कुछ अलग काम करेगा. हम क्या करते हैं, मिक्स मैच कर लेते हैं, थोड़ा समझ लेते हैं कि विराट कोहली को भी ये बात समझ में आती है कि किसी ना किसी सिचुएशन में, कभी ना कभी, किसी ना किसी टेस्ट मैच में या वनडे में, T20 में, हर बारी मुझे अग्रेसिव होने की जरूरत नहीं, कभी कभी मुझे काम होके इस चीजों को समझना भी पड़ेगा. He understands it, he picks it up from MS Dhoni, right?
एंड MS धोनी मस्ट बी पिकिंग इट अप फ्रॉम विराट कोहली कि हर बारी शायद मुझे काम होने की जरूरत नहीं, कभी कभी मुझे दिखाना पड़ेगा दैट आई एम आल्सो एग्रेसिव एट सम पॉइंट ऑफ टाइम इन लाइफ, इन सम फेजेस। हो सकता है किसी मैच में उनको दिखाना पड़े, तो क्या हर कोई क्या करता है, कुछ ना कुछ पिक करता रहता है। सो वट एवर यू पिक, यू इम्प्लीमेंट इट एंड सी इट अप टू योरसेल्फ दैट whether it works for you or not. So it's a combination of two, combination of the experience. एक्सपीरियंस का मतलब क्या होता है कि मतलब एक किताब है, जैसे किसी ने 250 पेज की किताब जो लिखी है और जिस किताब को हाइपोथेटिकली हम पढ़ते हैं, वो किसी के 10 साल के तजुर्बे का निचोड़ होगा, करेक्ट? कि उसने अपनी जिंदगी में जो एक्सपीरियंसेस किया, गलत सही, वो सारे एक्सपीरियंसेस आपको दे दिए किताब के फॉर्म में। आप उस किताब को 6 घंटे के अंदर पढ़ सकते हो और उसके 10 साल का तजुर्बा ले सकते हो, बट पता नहीं वो 100% आपके लिए ट्रू होगा कि नहीं। उसमें से कुछ बातें लेकिन ट्रू हो सकते हैं, कुछ बातें ले लो, जो सही लगे उसे रखो, जो नहीं लगे उसको अपनी इंट्यूशन से इंप्लीमेंट करो और आगे बढ़ो। इट्स अ मिक्स एंड मैच। Okay. Yes. Thank you so much. Thank you so much, sir. Moving on, thank you Yash. Moving on to Drashti Uza. Hello, sir. Hi Drashti, boliye. Sir, I struggle a lot of times with decision making. So I go to people, I ask their opinion, and then even then I struggle that what should be the right decision, that I might not fall down or face some loss due to my decision, because I'm responsible for my own life. So in that situation, how to deal with it? आपने एक चीज कही, दोबारा रिपीट करो क्वेश्चन, बड़ा इंटरेस्टिंग है आपके सवाल में आपका जवाब है, दोबारा रिपीट करो। That I go up to people to seek the advice, to seek the suggestion, because I think that I'm responsible for my own decisions, and I don't want to face a loss or some negative. बस रुक जाओ। You said you don't want to face the loss of whatever. That basically means, सोचो जरा ध्यान से, when you don't want to face the loss का मतलब क्या है? There's a fear here. Yes. कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए, गलत हो जाएगा तो मुझे बर्दाश्त करना पड़ेगा। आज तक जिंदगी में कुछ गलत नहीं किया है क्या जो बर्दाश्त करना पड़ा है? Done many times. तो बस फिर दिक्कत वाली क्या बात है? जब इतनी बारी कर लिया है तो आगे भी यही होगा ना, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं होगा। जिस दिन ये डर निकल जाएगा ना, उस दिन डिसीजन मेकिंग क्विक हो जाएगी, उस दिन क्लैरिटी आ जाएगी, क्योंकि अब डर खत्म हो गया। हमें ना डर खाता है अंदर ही अंदर कि जिंदगी मेरी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, अगर मैंने ये गली पकड़ ली या ये रास्ता पकड़ लिया और उसके बाद गलत हो गया तो पता नहीं क्या होगा मेरे साथ जिंदगी के अंदर। लेकिन क्या होता है, उसके चक्कर में हम डिसीजन ही नहीं ले पाते, हम उल्टा और गलत डिसीजन लेते हैं। मतलब हमारी इंट्यूशन हमें कहती है कि कर सकता है, कर लो, कोई नहीं, देखेंगे आगे के आगे, गलत ही होगा, इससे ज्यादा क्या होगा। एक रास्ता अगर आपने गलत पकड़ लिया तो क्या हो जाता है जिंदगी में? इसका मतलब यह है कि आपको थोड़ा सा लॉन्गर रूट से लाइफ में जाना पड़ेगा, करेक्ट? हम सीधा जा सकते थे, लेकिन हमने अपने डिसीजन में या गलती से या फियर के चक्कर में या कुछ भी करके हमने एक लेफ्ट ले लिया। अब वो लेफ्ट कैसा है कि वो लेफ्ट जा रहा है कहीं और, घुमा के किसी जंगल या किसी गांव में से घुमा के फिर रोड पे लेकर आ रहा है, उसमें आधा घंटा एक्स्ट्रा हो गया, बस इससे ज्यादा तो कुछ नहीं होगा। मिल तो फिर भी जाएगा वो रास्ता। जब गलत जाओगे तो किसी से पूछोगे ना, जब जंगल में चले जाते हैं गलती से गाड़ी, तो पूछते हैं अच्छा यहाँ से कहाँ से कैसे आएगी रोड, तो कोई कहता है यहाँ से राइट चले जाओ, अच्छा यहाँ से ये पेड़ की शाखा पकड़ लो, यहाँ से लेफ्ट ले लेना, यहाँ से ले लेना, पहुंच तो जाओगे। तो जब गलत चले जाओगे तो कोई ना कोई आ जाएगा मदद करने के लिए, कहीं ना कहीं कोई ना कोई हेल्प मिल जाएगी आपको, फिर रास्ते पे पहुंच जाओगे। बट होता क्या है, वी कीप फियरिंग कि अगर ऐसा हो गया तो वी विल हैव टू फेस द लॉस। हमें घबराहट हो जाती है, हमें डर लगता है कि नुकसान ना हो जाए, नुकसान हो जाएगा तो हर कोई क्या कहेगा, मुझे डांट पड़ेगी, मुझ पे चीखा चलाया जाएगा, मुझे ह्यूमिलिएशन महसूस होगी, मेरी मॉकिंग होगी, मुझे स्कूल्ड किया जाएगा। ये तो वैसे भी बर्दाश्त करो रोजमर्रा की जिंदगी में, किसी ना किसी फॉर्म में कोई ना कोई तो कर ही रहा है, करेक्ट? तो मैं कह रहा हूँ जब कोई ना कोई कर ही रहा है, यू सेड मेनी अ टाइम्स दिस हैज हैपेंड टू यू, आई एम सेइंग देन रिलीज योरसेल्फ ना, तो होने दो, एक बार और हो जाएगा, बट एटलीस्ट आजाद तो हो जाओगे। एटलीस्ट ये तो लगेगा मेरा डिसीजन था, मैंने किया तो गलत, कोई दिक्कत नहीं, वैसे भी तो कोई ना कोई कुछ बोल ही रहा है, वैसे भी बोल रहा है तो बोलने देते हैं। बट एटलीस्ट today I could take a decision on my own. Today I did not have to go and beg someone that please tell me what is the right decision, because there's nothing called right decision in this universe. What is the right decision? I'll tell you what is the right decision. The right decision is
when according to everyone around you, they feel what is right for you is the right decision for everyone. But actually ऐसा थोड़ा ना है. उनको लग सकता है कि आप IAS कर सकते हो या IPS कर सकते हो या ICS बन सकते हो, जो भी कर सकते हो, उनके हिसाब से आपकी जिंदगी के लिए ये सही डिसीजन है. आपके हिसाब से ये डिसीजन सही है या नहीं, ये तो आप डिसाइड करोगे ना. किसी और के हिसाब से डिसीजन होता है, आसपास के घर वाले, चाचा मामा, ताया, कि ये लड़की आपके लिए सही है या ये लड़का आपके लिए सही है शादी के लिए. उनको कैसे पता? उन्होंने उस लड़के के साथ जिंदगी थोड़ी ना बताई है. करेक्ट है कि नहीं? ये डिसीजन किसका होना चाहिए? जब डिसीजन आपका है तो उसकी गलतियां भी आपकी हैं, इसका रिपेंट भी आपका है, इसका सही भी आपका है. लेकिन होता क्या है, दूसरे के डिसीजन में फिर हम कंफ्यूज होते चले जाते हैं, क्योंकि हम शायद कुछ और चाह रहे हैं, दूसरा हमेशा अपने हिसाब से सोचेगा. बहुत सिंपल सी बात है ना बेटा, दो रास्ते जहां पर होंगे और दो लोग होंगे तो हर कोई अलग अलग ही सोचेगा ना. एक सोचेगा कि A से चले जाओ, दूसरा सोचेगा B से चले जाओ. पॉसिबिलिटी है कि नहीं है? तो A वाला कहेगा नहीं नहीं तू देख नहीं रहा बेटा, वो रास्ते से ना मुझे पेड़ दिख रहा है, वहां से रास्ता निकलता है. B कहता है वो पेड़ बेसिकली इल्यूजन है, भ्रम है, वो आपको और जंगल में ले जाएगा, रास्ता वो है जो सीधा दिख रहा है. करेक्ट? A खुद को कन्विंस करेगा, उसके लिए सारी जस्टिफिकेशंस दे देगा, सारे झूठ बोल देगा, क्योंकि दिमाग को जस्टिफाई करना बड़ा आसानी से आता है. करेक्ट? वो जस्टिफाई करता चला जाएगा अपने ब्लाइंड बिलीफ पे, अपने सुपरस्टिशंस पे, अपनी कंडीशनिंग पे, वो जस्टिफाई करता जाएगा. A अपने आप को जस्टिफाई करेगा, B अपने आप को जस्टिफाई करेगा, और दोनों फंस जाएंगे. दे विल नेवर बी एबल टू अराइव एट अ डिसीजन. द पॉइंट इज टेक योर ओन डिसीजन, लेट इट बी रॉन्ग. वैसे भी बर्दाश्त कर रहे हो, वैसे भी बर्दाश्त करो. कम से कम डिसीजन लेके आत्मा को तो खुशी मिलेगी कि मैंने अपना डिसीजन लिया. गलत तो गलत, सही तो सही, ये मेरा डिसीजन है. दूसरों से पूछेंगे तो बेटा सारी जिंदगी हम लोग भीख ही मांगते रह जाते हैं, क्योंकि तुम बताओ मेरी जिंदगी कैसे चलेगी. मतलब कोई दूसरा आपको बताएगा कि आप अपनी जिंदगी कैसे जिए. सोचो, अब तो 18 इयर्स के हो गए हो ना. माइनर होते तो समझ में भी आता. इफ यू आर 18+, आप दूसरे की बातें सुन सकते हो, चाहे आपका दोस्त है, चाहे आपका भाई है, चाहे चाचा है, मामा है, जो भी है आपके रिलेटिव्स हैं, कजन्स हैं, इनफैक्ट फॉर योर मॉम डैड, सबकी बातें आप सुनो, समझो, उनका पर्सपेक्टिव भी जानो. इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी बात बिल्कुल आंख बंद करके बंद कर दिया. उनका पर्सपेक्टिव भी जानो, फिर अपनी शीट बनाओ. दिस इज द प्रोस एंड दिस इज द कॉन्स. ये सही लग रहा है मुझे, ये गलत लग रहा है, फिर उसके हिसाब से डिसीजन लो, क्योंकि डिसीजन आपका है, उसका रिजल्ट भी आपका है. रिजल्ट चाहे खराब हो चाहे अच्छा, वो भी आपका है. बट नहीं लोगे और डरते रहोगे तो सारी जिंदगी मम्मी और पापा पे ही डिपेंडेंट रहोगे, या भाई बहन पे डिपेंडेंट रहोगे. तू बता दे मैं क्या करूं, तू बता मैं ये कोर्स ज्वाइन करूं कि ना करूं, तू बता मैं ये वर्कशॉप करूं कि ना करूं, तू बता मैं नौकरी करूं कि ना करूं. वो क्या बताएगा? वो बेचारा खुद ही अपनी जिंदगी में कंफ्यूज है, उसे खुद ही नहीं समझ में आ रहा है कि क्या करना है. वो भी अपनी जिंदगी ऐसे भरोसे में चल रही है. आप समझे? आपको डिसाइड करना है. Let them decide for their life, you decide for your life. Listen to everyone, but at the end of the day, boil it down to what you want to do out of your life, because at the end of the day, it has to be your decision. It may be wrong, it may be right. Right? Try this. At least इसी बहाने आप mature तो हो जाओगे. ऐसी at least इसी बहाने आपके पास experience तो हो जाएगा. अगर गलत हुआ, गलत रास्ते पे पहुंच गए, तो सीख लेना वहां से कि ये गलती की, ये सीख लिया. ये नहीं कि मैंने गलत चुना, ये कि ये रास्ता कहीं और लेके जा रहा था, मुझे भ्रम हो गया कि ये पेड़ शायद रास्ते पे नहीं लेके जाएगा, लेकिन लेके जा रहा है. इन द सेंस सीख. गलत ये नहीं है कि आपने डिसीजन लिया, गलत ये है कि हमने ये ट्राई किया बट दिस जस्ट डिड नॉट वर्क एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. कैन आई लर्न समथिंग फ्रॉम दिस इंसिडेंट? कैन आई लर्न समथिंग फ्रॉम दिस एक्सपीरियंस? सो गलत हो तो सीख लेना, और सही हो तो आगे बढ़ ही जाओगे. बट एटलीस्ट ट्राई तो किया, instead of getting scared and not trying and keep asking somebody or the other, then what is right for me? What is right for him or her may not be right for you. So, but when you get stuck between your choice and your benefit, or where you will be conditioned well, or where your state will be well, so your choice and your well-being state, so what should you दोबारा choose? बोलो, समझाओ. Means so I'll tell the real situation. I'm applying to study abroad and I want to go to Europe, but where my safety lies is in Canada. Okay. So that's very embarrassing that
this is where I want to go and this is where I have to go because of safety. So I understand. Listen to me very, very carefully for everyone. Either you can fall into your safety net in life or you can do something. दोनों चीजें अलग अलग है. If Europe is coming in your mind, there must be a reason for Europe to come in your mind, right? Otherwise तो कनाडा ही आता हर बार क्योंकि सेफ्टी नेट कंप्लीटली है. तो इसका मतलब अंदर कुछ है जो डाइकोटोमी क्रिएट कर रहा है कि नहीं, शायद यहाँ पे आपका जीवन बेहतर हो सकता है, शायद यहाँ से कोई रास्ता खुल सकता है जो बहुत बेहतरीन हो सकता है. लेकिन क्योंकि डर है इसलिए सेफ्टी नेट नजर आ रहा है. अगर डर नहीं होगा तो सेफ्टी नेट नजर नहीं आएगा ना. देखो बहुत सिंपल है, जो भी डिसीजन लोगे उसके कॉन्सिक्वेंसेस तो होंगे होंगे, बट इट्स ओके, बट लेट इट. जस्ट लिसन टू योरसेल्फ वेरी डीपली. अंदर से आवाज आती है, अंदर से इंट्यूशन जागृत होती है. समथिंग इनसाइड अस वांट्स टू एक्सपैंड एंड वांट्स टू ग्रो एंड वांट्स टू इवॉल्व. उसके लिए कोई सेफ्टी नेट नहीं होता. कि मतलब ये तो वो वाली बात है कि पहले मैं बॉम्बे आऊं और उससे पहले सोचूं कि कोई है यहाँ पर जो मेरी मदद करेगा, अगर नहीं है तो नहीं आता हूँ. अरे आप आओगे तो पता नहीं कौन सी अपॉर्चुनिटी आपके लिए वेट कर रही है यहाँ पर. फिर आओगे तो देख लेना कहाँ से किराए पे घर मिलता है, कहाँ से खाने को मिलता है, कहाँ से पीने को मिलता है, कौन मदद करेगा. आओ तो सही. घर पे बैठ के हम सोचते रहेंगे कि होगा कि नहीं होगा, कौन मदद करेगा, वहां पे क्या होगा, कोई नहीं करेगा. करने वाले बहुत सारे लोग हैं जो कर लेते हैं, राइट. सो अगर ये डाइकोटमी आ रही है, वरना डाइकोटमी आती नहीं ना, वरना एक ही डिसीजन होता कि कनाडा है क्योंकि वही सेफ है, वहां पे भी अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी. अगर कुछ अंदर से आ रहा है तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट समथिंग इनसाइड यू वांट्स टू ट्रेड दैट पाथ. सोचो, महसूस करो, और अंदर से आए तो टेक अ लीप ऑफ फेथ एंड मूव. वहां पे क्रिएट करो अपनी सेफ्टी. फिर वहां पे देखो वहां पे क्या हो सकता है. और सेफ्टी क्या होती है ओजा जी? सेफ्टी कुछ नहीं होती. एक नई जगह पे आप जाते हो तो वो अनसेफ है. वही नई जगह 15 दिन के बाद जब दोस्त मिल जाते हो तो सेफ भी हो जाती है. करेक्ट है ना? एक नई जगह पे जाते हो, एक नए कॉलेज में जाते हो, वहां पे दोस्त नहीं बने होते तो पहले दिन डर लगता है कोई रैग करेगा, कोई ऐसा होगा, कोई वैसा होगा. 15 दिन बाद जो रैग कर रहे थे वही दोस्त बन जाते हैं. तो इससे बड़ा सेफ्टी नेट नहीं है कोई. कितना टाइम लगता है, हो गई सेफ्टी. बस इतना ही सिंपल. ओके, क्लियर? thank you so much. Okay, thank you so much. हाँ जी. Any more question? We'll take one more question. Okay, हाँ जी. Okay. छवि जी बोलिए. क्या सवाल है आपका? कैसे हो सर? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? ऑल गुड. पहले तो belated happy birthday and happy नवरात्रास. थैंक यू आप सभी को. अच्छा श्योर. ये चीज कैसे समझे कि लाइक इफ यू, मतलब मैं एक्सप्लेन करने में थोड़ा सा मुझे समझ नहीं आ रहा कैसे मैं क्वेश्चन पुट करूं. कि कोई पर्सन आपके लिए सही है एंड व्हेन यू डोंट नो हिम, मतलब अभी एक्चुअली थिंग इज गोइंग सब कुछ एक साथ में. सॉरी, समझाओ जरा. मतलब आप किसी को जानते नहीं हो और लेकिन समझना चाह रहे हो कि वो आपके लिए सही है या नहीं है. Yeah, so basically the thing is कि अभी सब कुछ मेरे सिर में एक साथ आ रही है चीजें. So as in कि जीवन है, होता रहता है. Yeah, so अब ये है कि you know it's the right time to get married and all this stuff, but how to know that तो person जान is लो right? उस इंसान को. Yeah, but आपको I'm saying it's किसी भी बोलो. but वो एक मतलब वो कैसे पता चलेगा that he is the right one? मतलब ऐसा लगता है कि ये gamble है. You know, you never know who is right or who's wrong for you, ना? छवि जी, जिंदगी गैम्बल ही है. सच तो यही है, चाहे वो लव मैरिज हो चाहे वो अरेंज मैरिज हो. I'm not saying that आंख बंद करके गैम्बल खेलो. All I'm saying is कि जितना जान सकते हो उतना जान लो. क्योंकि अगर हम ये भी कहते हैं कि एक इंसान को मैं 100% जान लूंगा तो भी सत्य नहीं है. क्योंकि आप उसको जान भी लेंगे, कल वो पलट जाएगा, उसकी जिंदगी में कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाएगा जो उसको कंप्लीटली पलट देगा, तो आपको लगेगा आप नए इंसान के साथ जीवन बिता रहे हो. फिर ऐसा होता है कि नहीं होता? मुझे बताओ. सबके साथ हुआ होगा. एक ट्रांसफॉर्मेटिव इंसिडेंट होता होगा जिंदगी में हर इंसान के जिंदगी. एक या बहुत सारे होते हैं, बट एक की बात करता हूँ अभी.
क्या ऐसा कोई ट्रांसफॉर्मेटिव इंसिडेंट हुआ नहीं होगा आपकी जिंदगी में? वो ट्रांसफॉर्मेटिव इंसिडेंट यूजुअली ट्रेजेडी के साथ होता है, इन द सेंस कोई एक्सीडेंट, कोई बीमारी, कोई किसी के साथ हार्ट ब्रेक, कोई सेपरेशन, किसी को बहुत चाहते उसकी मृत्यु, या कोई बहुत इंपॉर्टेंट जॉब जिसमें काम कर रहे थे, या कोई ड्रीम का टूटना. इट ट्रांसफॉर्म्स यू. Like when I left cricket and I could not become a cricketer, it was a transformative incident for me. It changed me completely. तो जो मेरे माँ बाप को लगता होगा मैं 20 साल से ऐसा हूँ, वो एक लम्हे में पलट गया, मैं बदल गया. करेक्ट. शेरन ग्रोथ जिस दिन ओपन हुआ उसके बाद मैं कंप्लीटली बदल गया. तो अब मुझे बताओ, मेरी वाइफ जो इतने साल से मेरे साथ है, उसे लगता है एक्चुअली कि मैं कंप्लीटली डिफरेंट इंसान हूँ. बहुत सारे लोगों को लगता है जो मुझे 20 साल से जानते हैं that I'm not the same person as I was. अब आप मुझे बताओ, अब तो हम किसी को 100% कभी नहीं जान पाएंगे. All I'm saying is बस आंख बंद करके गैम्बल मत करो, बस देख लो, समझ लो, परख लो, जितना जान सकते हो उतना जान लो. उसके बाद तो आपको छोड़ना ही पड़ेगा, उसके बाद तो आपको वो जानकारी छोड़नी पड़ती है. उसके बाद आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा अपने आप को, अपने इंट्यूशन को. What is your heart saying? What is your gut saying? What is that instinct saying? कि are you feeling somewhere down the line कुछ connection महसूस हो रहा है कि नहीं हो रहा? कुछ जुड़ाव किसी से लग रहा है? क्योंकि देखो, ये सब चीजें ना समझाई नहीं जा सकती. अगर किसी के साथ कनेक्शन होता है, मैं एग्जांपल देता हूँ. मैं 19 साल का था या 20 साल का था जब मेरे मामा जी ने, मैं MBA की तैयारी की थी, कैट का एग्जाम दिया था. बीच में 4-5 महीने का गैप था और इंस्टीट्यूट में दाखिले में समय था. दिस इज नवंबर दिसंबर somewhere around 2002, I think so, around that. I don't know, maybe 2002 whatever. तो 19-20 साल का था और मेरे मामा जी ने कोई कोर्स किया था, किसी का कोई पर्सनालिटी डेवलपमेंट, कोई बिजनेस का कोर्स था. तो उन्होंने कहा तेरे पास 2-3 महीने फ्री हैं, मैं तेरे पैसे जमा करवा देता हूँ, तो जाके कर ले. तो ऐसा ठीक है. तो उनके ऑफिस से फोन आया कि अनुराग नाम के कोई इंसान है, वो सिखाते हैं, वो आपसे मिलना चाहते हैं, आप आ जाइए. तो मैंने गया, मैंने कहा ठीक है. तो मैं चला गया मिलने के लिए और मुझे याद है, तो मुझे ये था, मैंने कहा 15-20 मिनट मिलेंगे, हाय हेलो करेंगे, उसके बाद निकल जाते हैं. तो मैं गया, उनके ऑफिस गया और बैठा उनके सामने और कुछ ऐसी इंट्रोड्यूस हुआ एक दूसरे के साथ. एंड आई एंडेड अप स्पेंडिंग 4 hours in that office. I had gone for 15 minutes. I had to go somewhere else. After that, I cancelled everything. It kept cancelling on its own. Because once you meet someone, sometimes it happens that I got connected. और उनसे बात शुरू हुई, उन्होंने अपनी जिंदगी की कुछ बात की, मैंने अपना कुछ कहा, उन्होंने मेरे ड्रीम्स पूछे, मैंने उनके पूछे, और कहीं ना कहीं एक दोस्ती हुई, कनेक्शन हो गया, जबकि वो मुझसे उम्र में 15 साल बड़े हैं. All I'm trying to say is, इसमें क्या है? अगर आज मैं उस इंसान को देखूं तो वो काफी अलग इंसान है जब मैं मिला था. आज मैं देखूं अपने आप को तो मैं काफी अलग हूं उनसे. All I'm trying to say, at different phases of life, things will keep changing. You will keep changing. सबसे बड़ी बात तो ये है, हमें लगता है कि हम दूसरे को जैसा है वैसा ही पकड़ लें और वैसा ही बांध लें और वैसा ही वो जिंदगी भर है. कोई भी वैसा नहीं रहता. आपके माँ बाप भी वैसे नहीं रहते, आप भी वैसे नहीं रहते. आपकी शक्ल सूरत बदल जाती है हर कुछ 6 महीने में, साल में. आपके हेयर स्टाइल बदल जाते हैं, आपकी बॉडी बदल जाती है, आपके इंटरनल हार्मोन्स बदल जाते हैं, राइट. आपका बिहेवियर भी बदलता है. 6 महीने पहले आप किसी के साथ कुछ अलग रिएक्ट करते हो, उसी इंसिडेंट में उसी इंसान के साथ 6 महीने बाद अलग रिएक्ट करते हो. यू आर अ डिफरेंट बीइंग. The only thing is, just don't blindly trust anyone. Keep yourself open. Keep the eyes open while gambling in life, because life is also a gamble. जितना जान सकते हो, जितना समझ सकते हो, जितना महसूस होता है, जितना कनेक्शन लगता है, अगर लगता है you feel like taking the next step further, take the next step. Feel like no, if you start seeing some red flags opening your eyes, wait, move on to the next person. जल्दबाजी मत मचाना, धैर्य रखना, इंस्टिंक्ट की सुनना. बोलो. बोलो क्या कह रहे थे? अच्छा, बट क्या बेसिक चीज क्या देखनी चाहिए? मतलब ऑब्वियसली इफ आई डोंट नो समवन तो मैं एक बेसिक चीज, एक स्टैंडर्ड क्या देख के चलूं? बिकॉज इनिशियली तो सब बहुत ही हो यू नो यश राज वाली मूवी चल रही है टाइप वाला फील आता है, बट ऑब्वियसली इट्स अ लॉन्ग टर्म थिंग. आप नहीं छोड़ सकते. अगर आपने कर लिया तो ऑब्वियसली आप उससे बाहर नहीं निकल सकते हैं, भाग नहीं सकती. यू हैव टू टैकल एवरीथिंग विद हिम या व्हाटएवर. अच्छा, 1 मिनट रुको.
आज के जमाने में आप मुझे कह रहे हो कि बाहर नहीं निकल सकते, अपने आसपास देख लो। I know, but मतलब see मेरा माइंडसेट ये था कि honestly I don't want to indulge in all this stuff. बट फिर यही होता है कि नहीं, अभी नहीं लग रहा आपको, लेकिन okay. Some internet glitches. Can you hear me, like everyone? Yes, now, yeah. हम ये कह रहे हैं कि हम बाहर नहीं निकल सकते, ये सच नहीं है। बाहर हम कभी भी निकल सकते हैं, उसमें कॉम्प्लिकेशंस हैं, हमें वो कॉम्प्लिकेशंस नहीं चाहिए। इन द सेंस अगर किसी की मैरिज टूटती है, किसी का सेपरेशन होता है, तो बाहर निकल पाते हैं, ऐसा नहीं है। हम 50 साल पुराने जमाने में नहीं रह रहे हैं। रुक जाओ, सुन लो। रुकिए। All I'm saying is, the only thing is, of course, because we are conditioned like this, और हम नहीं चाहते उससे बाहर निकलना, हम मैरिज को एटर्नल समझते हैं। हमें ऐसा कहा गया है कि मैरिज इज एटर्नल। नथिंग इज एटर्नल इन दिस यूनिवर्स। ऑल आई एम ट्राइंग टू से, कोशिश ये होती है कि वो एटर्नल रहे, कोशिश ये होती है कि वो जिंदगी भर का साथ रहे, लेकिन हो सकता है कि चीजें गड़बड़ा जाए, हो सकता है कि चीजें खराब हो। बहुत अच्छा है, आपने उस इंसान को 100% पकड़ लिया, परख लिया, आपने चेकलिस्ट में सारे पॉइंट्स आपके 100 आ गए, वो इंसान सही रहा। 10 साल के बाद समथिंग हैपन टू हिम, तब क्या करोगे? तब भी तो कुछ बदलेगा ना, तब भी तो बाहर निकलना पड़ेगा। हो सकता है 10 साल के बाद रिलेशनशिप इतना टॉक्सिक हो जाए कि आप एक दूसरे की शक्ल ना देखना चाहो। हो सकता है 5 साल से आप टॉक्सिक रिलेशनशिप में उस 10 साल के बाद भी फिर आपको लगे 15 साल में अब तो मुझे बाहर निकलना, और आप निकलने की कोशिश करो, आप निकल जाओ बाहर। हो कुछ भी सकता है, पहली बात तो डर मत रखो। हो क्या रहा है, डर बहुत सारे हैं, डर प्रिवेंट कर रहा है कनेक्ट करने के लिए भी। हम चीजें ढूंढ रहे हैं, हम चेकलिस्ट ढूंढ रहे हैं। दिस नथिंग कॉल्ड चेकलिस्ट। एक ह्यूमन बीइंग की कोई चेकलिस्ट नहीं है, और जो चेकलिस्ट है वो दिमाग की कहानी है सिर्फ, कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। जो आज सिक्योर दिख रहा है, जो आज स्टेबल दिख रहा है, जिसके पास आज करोड़ों रुपए, हो सकता है 6 महीने के बाद बैंक करप्ट हो जाए। पॉसिबल है कि नहीं है? जिसके पास आज अच्छी नौकरी है, हो सकता है कि 6 महीने बाद कुछ और कोविड का इंसिडेंट आ जाए, XYZ कुछ अनफॉर्चुनेट सर्कमस्टांस आ जाए, उसकी नौकरी चले जाए और 6 महीने तक घर बैठ जाए। हो सकता है जब आप उससे मिले थे उसके पास गाड़ी, घर, पैसा, सब चीजें थी, लेकिन 3 साल के बाद कुछ ऐसा हो गया कि जीवन में सब चला गया। हो सकता है जिससे आप मिले थे आज जो बहुत लॉयल है, हो सकता है 4 साल के बाद उसको किसी और से मोहब्बत हो गई, वो सिर्फ पीछा छुड़ाना चाह रहा है और आप इससे पीछा छुड़ाना चाहते हैं, कोई लॉयल्टी भी नहीं है। हो तो सब कुछ सकता है, और ये सब सच ही तो है, आपके आसपास दिख नहीं रहा है क्या? होता नहीं है क्या जीवन में? होता तो है। बेटे जब होता है तो ये भी एक सच है ना। तो ऑल आई एम ट्राइंग टू से, जब हम सच को देख लेते हैं हम रियलिटी में आ जाते हैं, हमारे फियर्स खत्म हो जाते हैं कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ हैपनिंग एवरीथिंग इन दिस लाइफ। At this moment, I'm capable or equipped enough to take a decision which is only relevant to this moment. Tomorrow, nobody knows. We try to seek security and stability. We try to make everything eternal. It is not possible. तो अब क्या होगा, जब आपका फियर छूटेगा तो आप ना देख पाओगे क्लियर, आप कनेक्ट कर पाओगे, क्योंकि फियर्स में कनेक्शन नहीं है। या तो मैं डर सकता हूँ, मैं समझ सकता हूँ और कनेक्ट कर सकता हूँ। अगर मैं डरा रहूंगा तो मैं डर के आगे बस चेक करता रहूंगा कि ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है। डज योर हार्ट कनेक्ट और इट कीप्स गेटिंग स्कैर्ड? जब आप किसी से मिलते हो तो कनेक्शन अगर किसी से महसूस हो जाता है, हाँ, उसके बाद उसके पहले थोड़े बहुत डर आते रहते हैं बीच बीच में कि यार पता नहीं ये सही है, पता नहीं सही है, लेकिन अगर महसूस हो रहा है तो कभी ना कभी थोड़ी बहुत लीप ऑफ फेथ तो लेनी पड़ेगी। करेक्ट। और दूसरी बात, जो भी ले रहे हो, जो भी लीप ऑफ फेथ ले रहे हो, जो भी गैम्बल कर रहे हो, जो भी आंख खोल के कर रहे हो, सब चीजें कर रहे हो, बीच बीच में थोड़ा सा देखते भी चल, मतलब आंख खोल के करना, बस मैं इतना कहूंगा। एक है कि हम आंख बंद करके हमें कनेक्शन महसूस हुआ, सामने रेड फ्लैग्स दिख भी रहे हैं, लेकिन हम इमोशंस के अंदर इतने ओवरवेल्म्ड है कि हमें कुछ दिख ही नहीं रहा। करेक्ट। इमोशंस ने इतना हैवी कर दिया, इतना ओवरवेलमिंग है कि सामने हमें दिख रहा है कि हाइपोथेटिकली सामने वाला गलत कर रहा है, सामने वाला बुरा कर रहा है, लेकिन हमें कुछ नजर ही नहीं आ रहा क्योंकि वी आर ओवरवेल्म्ड विद दोस इमोशंस। करेक्ट। एक है दूसरा एस्पेक्ट है कि हम इतने फेयरफुल हैं कि सामने से कोई आ रहा है, सामने से कोई हाथ
थामना चाह रहा है, सामने से कोई सही इंसान आ रहा है, लेकिन हम डरे इतने हैं कि हम उसकी चेकलिस्ट ही खत्म नहीं हो रही, सामने वाले को चेक करे जा रहे हैं, टेस्ट करे जा रहे हैं, वो पास भी हो रहा है लेकिन हम ही फेल करे जा रहे हैं। करेक्ट? तो दोनों सिचुएशन सही नहीं है ना, तो दोनों का बैलेंस बनाओ कि कनेक्ट भी करो और आंख खोल के भी चलो। जहां लगे कि अगर रेड फ्लैग एक है कोई दिक्कत नहीं, दूसरा है कोई दिक्कत नहीं, तीन अगर बार बार दिख रहे हैं तो इसका मतलब रुक जाओ, डोंट टेक द डिसीजन, मूव ऑन टू नेक्स्ट। ऐसे ही करना पड़ेगा ना, जिंदगी तो ट्रायल एंड एरर है। जिंदगी ये नहीं हो सकती ना कि आप मुझे 10 पॉइंट्स बता दीजिए, 10 पॉइंट्स मैं बता देता हूँ, चेक दिस 10 पॉइंट्स, those 10 points are valid today, may not be valid tomorrow। फिर क्या करेंगे? और पर जो ये 10 पॉइंट्स बता रहे हैं, हाँ बोलिए बोलिए। बट इट इज लिटिल स्कैरी, मतलब नो ऐसा लगता है कि लाइफ मैंने सुना था कि हाँ लाइफ वेरी सिंपल होती जब छोटे थे, बट ऐसा लग रहा है कि ओ भाई इतनी सारी चीजें होती है करने को एंड यू हैव टू टेक योर डिसीजन। It is scary because we are surrounded by fears and we have deep rooted fears inside. So I would suggest start sorting out your fears. When we are fearful, the world looks fearful to us. This is the truth of life. जब मैं डरा हुआ था ना तो मुझे आसपास डर ही दिखता था, आज मैं डरा हुआ नहीं हूँ तो आसपास मुझे मोहब्बत दिखती है। क्या होगा? विश्वास तोड़ के चला जाएगा? सुनो सुनो सुनो, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, किसी से कनेक्ट हो जाएगा तो विश्वास ही तो तोड़ेगा, कुछ गलती तो करेगा, कुछ चीटी तो करेगा, तो क्या हो गया? करने दो, जाना चाहेगा जाने दो, कोई दूसरा इंसान जीवन में आ जाएगा। जीवन रुकेगा नहीं किसी के लिए, ना आपका रुकेगा ना उस इंसान का रुकेगा। होता क्या है, हम पकड़ना चाहते हैं, होता क्या है, हम रोकना चाहते हैं, हम टिकना चाहते हैं। हम टिक नहीं पाएंगे, रोक नहीं पाएंगे, कोई भी नहीं कर पाएगा, पॉसिबल ही नहीं है। कैसे पॉसिबल होगा? एवर चेंजिंग एनवायरनमेंट के अंदर कुछ पॉसिबल है? जो टिकना चाहेगा वो टिकेगा, जो रुकना चाहेगा वो रुकेगा, जो थमना चाहेगा तो साथ वही थमेगा ना, जो नहीं करना चाहेगा आप जितना मर्जी कर लो, पॉसिबल ही नहीं है। अगर आप और कोई और किसी के साथ रिलेशनशिप में है, the other person doesn't want to be, can you force him to be in a relationship with you? Can you force him to love you? Can you force him to care for you? No, you can't. Nobody can. We can't. We are incapable of that. Right? Can you plead him to love you? Can you request him to love you? He has to feel it on his own. Right? Yeah. And that feeling is very voluntarily. वो फीलिंग तो उसकी अपनी है, उसमें आप क्या कर लोगे? आप तो बस आप अपनी तरफ से कुछ कोशिशें कर सकते हो कि वो फील करे अच्छा आपके बारे में, कि आप खाना बना सकते हो उसके लिए हाइपोथेटिकली, आप उसको पिक्चर पे ले जाओगे, आप उसकी केयर करोगे, उसको अटेंशन दोगे ताकि वो फील करे अपने आप में आपके लिए कुछ अच्छा। बस इससे ज्यादा थोड़ा ना कुछ कर सकते हो। फिर भी अगर वो नहीं फील करना चाहेगा तो क्या करोगे? कुछ नहीं। फिर भी वो जाना चाहेगा तो क्या करोगे? कुछ नहीं। तो इस बात के सत्य को देखना भी जरूरी है, समझना भी जरूरी है। जब ये हो जाएगा तो डर निकलेंगे, जब अपने डर निकलेंगे तो समझ में आएगा एग्जैक्टली कि जीवन कहाँ जाता है। फिर लाइफ ना क्लियर हो जाएगी थोड़ी सी, फिर रिलेशनशिप भी बेहतर हो जाएंगे, क्योंकि आपके अंदर डर नहीं है। जब आपके अंदर डर नहीं है तो आप दूसरे के अंदर डर नहीं डालोगे और ना देखोगे। जिसके अंदर डर होता है ना वो दूसरों को भी डर दे देता है जाने अनजाने में। If you have love inside you, what will radiate? Love will radiate. If you have fear inside you, what will come out? Fear will come out. What is in the cup will come out, whether it's coffee, whether it's tea, whether it's green tea, whether it's water. The cup has got nothing to do with it. What is inside your cup will spill out of it. Deal with yourself. क्या है ना, बहुत सारी चीजें टूटेंगी, बहुत सारी चीजें छूटेंगी, बहुत कुछ होगा। जब यहाँ पे सेशंस करते हैं तो बहुत सारी चीजें टूटेंगी, खुद भी टूटोगे, बिना टूटे जुड़ोगे कैसे? अपने अंदर झांकना पड़ेगा। ओके, ऑलराइट, थैंक यू। क्वेश्चन एंड आंसर राउंड यही एंड करते हैं। थैंक यू छवि जी। हम एक काम करते हैं, लेट्स मूव ऑन फॉर फ्यू मिनट्स टू द 5am पार्टिसिपेंट्स। बाकी सब जो 5am पार्टिसिपेंट्स नहीं है, जो नहीं कर रहे हैं, दे कैन लीव। Just everyone who has been doing it regularly, please stay. We'll speak to you for the next 15 minutes, then you guys can leave. Okay?
So 5am participants. हाँ जी. Wonderful. So everyone's been 5am? Yes, All sir. of you? Yes, sir. क्या बात है. That's nice. Yes, sir. Wonderful. That is wonderful. हाँ, कैसा लग रहा है 5am करने के बाद? कौन मुझे बताएगा? Please raise your hands. बाकी सब शांत हो जाएं. सलोनी जी, आप बताइए पहले. एक सेकेंड. बाकी सब म्यूट प्लीज. थैंक यू. हाँ जी. प्रियंका म्यूट. Rest everyone mute. Yes. सलोनी जी, unmute yourself. आप unmute कीजिए. हाँ जी. Yes, sir. Hi. Belated happy Hi. birthday, sir. Thank you so much. How are you? I'm doing very good. आप कैसी हैं? एकदम बढ़िया, sir. Feeling very good, energetic. Basically, I'm getting more time for myself, my practice, and I'm getting time to prepare for the classes which I take. I actually take classes at early morning only in 6 a.m. At 6 Wow. a.m. So I used to क्या wake बात up है. at 5:30 already. हम्म. But थोड़ा half an hour shift से वो जो बोलते हैं ना sir, calm in the chaos. The nightlife, very calm, Yes. sir. हम्म. You have your हम्म. own thoughts. Your thoughts are very chaotic, but still you have nature's silence, which actually energizes you and makes you feel warmth from inside, basically. That nahi, no matter whatever happen, only you are there for yourself and you will only be there for yourself. Kuch bhi ho jaye, this is the only Absolutely. person who's gonna stand by you forever. बाकी लोग जैसे हवा भी आती जाती रहती है, लोग भी आते जाते रहेंगे. वो तो सब पे है. ये तो होगा ही होगा. इतना जितना समझ लें, ये बड़ी अच्छी बात है. You start feeling the calm and the chaos. Yes, sir. ये सुबह सुबह उठने से हो जाता है, क्योंकि जैसे वो कामनेस अपने अंदर रिसाइड करती है तो आप ठहर जाते हो. जब आप ठहर जाते हो तो आपको सब चीजें दिखती हैं. कौन जा रहा है, कौन आ रहा है. जब आप ठहरे हो, नहीं हो रहे, तो आप भी उसमें भटक रहे हो. और जब आप भटक रहे हो तो कुछ दिखता नहीं है क्लियरली. Yes, sir. So it's wonderful. Feeling Thank very you. good. Wonderful. Sir. Thank you so much. Feeling I very just good. wanted to join, and basically I got to know you by Ajinkya sir. अच्छा, how nice is Ajinkya that? Meher sir. Wonderful. So I saw I know. his post with you, then Cheryl ma'am also. Then I went through your profile and all, and then I really started seeing your videos and all, and got inspired through that. Then I thought, let's give it a try. How nice. Wonderful. Thank you so much, Saloni ji. Thank you That's so much, wonderful. sir. Thank you. Thank you. Thank you. Anyone else regarding 5 a.m.? किसी को कुछ पूछना है, कोई confusion भी है, कुछ बोलना भी है, कुछ share भी करना है, please feel free. We have few minutes. हाँ जी. Moving on to तुहिना जी. तुहिना जी, आप कुछ कहना चाहती हैं? हाँ जी, बोलिए. Unmute कीजिए. So first of all, happy belated birthday. और 5 AM ट्रांसफॉर्मेशन क्लासेस ज्वाइन करने के बाद मतलब दिन जैसे मतलब लॉन्ग डे ऐसे फीलिंग हो रही है. और पर आज मेरे साथ एक कुछ ऐसा हो गया कि एक एग्जाम का रिजल्ट था तो उसमें फेलियर आ गया. तो बैक टू बैक फेलियर मिल रहा है, तो इससे ना बहुत डिसअपॉइंटमेंट हो रही है. मतलब पता नहीं कि इसको कैसे हैंडल करना है और नेक्स्ट स्टेप्स कैसे लेना है. तो थोड़ा सा परेशान भी हूँ. ओके, बट ये फेलियर क्यों हो रहा है, ये सोचने की कोशिश की है हमने? जी सर, एक्चुअली What is the cause of this शायद failure? Why it's happening to you? एक्चुअली आई थिंक एग्जाम फियर इज देयर और द फियर ऑफ फेलियर इज द कॉज ऑफ. देखो, बड़ी अजीब सी बात है ना. फियर ऑफ फेलियर ही हमारे फेलियर को कॉन्सिक्वेंस ला रहा है. मतलब हमें डर है कि हम फेल हो जाएंगे और फिर हम फेल भी हो रहे हैं. तो समझना पड़ेगा ना, एक बार तो खुद से लड़ाई लड़नी पड़ेगी, खुद को समझाना पड़ेगा कि ठीक है, फेल होगा तो होगा, बट इस बार फियर नहीं रखना, क्योंकि ये डिसीजन हमें जिंदगी में लेना ही पड़ता है. मतलब अगर मैं बार बार डरता रहूं क्रिकेट पिच पे जाके कि आज मैं 0 पे आउट हो जाऊंगा, आज मैं 0 पे आउट हो जाऊंगा, तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स मैं 0 पे ही आउट हो जाता हूँ, क्योंकि मैं डरा इतना हूँ.
कभी ना कभी तो मुझे अपने आप से कहना पड़ता है ठीक है यार, आउट तो आउट, क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा क्रिकेट छुड़वा देंगे, ग्राउंड से बाहर निकाल देंगे, कोई ह्यूमिलिएट करेगा, कोई मॉक करेगा, लेकिन कभी ना कभी तो उसको फेस करना पड़ेगा ना, तभी तो बाहर जाएगा। इन द सेंस कभी ना कभी तो आपको अपने आप से अटूट वादा करना ही पड़ेगा ना कि ठीक है यार, एग्जाम है, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, नहीं होगा, खत्म हो जाएगी, अगली बार भी नहीं होगा, अगली बार भी नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं। बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आई कांट कीप वरिंग अबाउट इट, आई कांट कीप, बाकी सब म्यूट कीजिए प्लीज, राइट, कि मैं हर बार डर नहीं सकता, क्योंकि या तो डर है या फिर हम आगे कुछ कर सकते हैं जीवन के अंदर, दोनों चीजें साथ साथ चल नहीं सकती, क्योंकि डर ही तो है जो हमें रोक रहे हैं। वी आर द ओनली वन हु इज प्रिवेंटिंग आवरसेल्व्स फ्रॉम स्टेपिंग अहेड इन लाइफ। कोई और आपको रोक ही नहीं रहा, आपके ही डर रोक रहे हैं। और अक्सर 99% हमारे ही डर रोकते हैं। हमारे माँ बाप सिर्फ जरिया होते हैं, भाई बहन जरिया होते हैं, स्पाउस, गर्लफ्रेंड, वाइफ, हस्बैंड, सब जरिया है हमें रोकने का, कोई रोक नहीं रहा है, हम खुद को रोकते हैं, क्योंकि हमारी मनगढ़ंत चीजें बड़ी हैं अंदर की। तो अपने आप से कभी ना कभी तो बोलना पड़ेगा कि यार या तो ये, या तो डर रहेगा, या फिर नहीं तो छूटता है, एग्जाम छूट जाए, क्योंकि कभी ना कभी तो करना ही पड़ता है, कोई चॉइस ही नहीं बचती, वरना फिर हम वापस वहीं आ रहे हैं बार बार। फियर ऑफ फेलियर है और वो फेलियर ही दे रहा है, तो हो जाते हैं एक बार और फेल, लेट्स ट्राई वन मोर, लेट अस फेल, बट दिस टाइम आई डोंट वांट टू हैव फियर, दिस टाइम आई वांट टू एंजॉय, दिस टाइम आई जस्ट वांट टू गिव माय एग्जाम, बस खत्म, क्या होगा क्या नहीं होगा छोड़ देते हैं। आई वॉन्ट टू बी देयर इन द एग्जामिनेशन हॉल, जितना समझ में आएगा, जैसा समझ में आएगा, क्योंकि इस बारी मैं ट्राई नहीं कर रहा पास होने के लिए, इस बारी मैं ट्राई ही नहीं कर रहा फर्स्ट आने के लिए, इस बारी मैं ट्राई नहीं कर रहा कि मुझे इससे ये मिलेगा, उससे वो मिलेगा, फिर नौकरी आ जाएगी, फिर पैसे आ जाएंगे, फिर बच्चे आ जाएंगे, फिर ये हो जाएगा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि ये छोड़ना पड़ता है, सारे बैगेजेस हैं विच क्रिएट्स फियर। The moment you start leaving the baggages, the fear starts to dissolve, because fear is an illusion. Fear भ्रम है, fear is something which is not real and appearing real to you. False evidence appearing real is called fear. False evidence appearing real. जो झूठ है वो सच दिख रहा है, जो सच महसूस कर रहा है वो फियर है और कुछ नहीं। ट्राई दिस। मैंने ट्राई किया अपने जीवन में एक बारी, मुझे पता है, आप भी ट्राई करें, अब जाके बाहर निकलेगा, अब जाके कुछ होगा। ओके, thank you. Moving on to next. Yes. Okay. Anyone else for 5 AM? Otherwise, very simple. आप continue कर सकते हैं 5 AM transformation. Tejaswini, I know you want to say something. I'll stay with you, with everyone for a few minutes. 5 AM, you can continue. Do you want to do challenges? थोड़ा tough Yes, करना sir. है? Yes, sir. कितने लोगों को टफ करना है? वो हाथ खड़ा करें जरा। Yes, वो sir. करोगे Yes, sir. challenges कि नहीं करोगे? करेंगे सर, ठीक है, तो करेंगे सर। आप करना चाहते हो तो 5 AM तो जो कर रहे हो, वंडरफुल, तो 5 AM कर रहे हो तो करते रहो। एवरी डे एट 6 AM टिल द नेक्स्ट संडे वन चैलेंज विल बी प्रेजेंटेड इन माय स्टोरी। हमारी स्टोरी में एक चैलेंज होगा, राइट? वो चैलेंज आपको पूर्ण करना है, कंप्लीट करना है। मेक अ वर्कबुक, राइट? एक वर्कबुक एक डायरी में लिख लें कि मंडे का ये चैलेंज था, उसके आगे लिखें यस और नो, कंप्लीट किया या नहीं किया। अगर कंप्लीट किया है तो यस, नहीं किया तो नो। हम संडे को डिस्कस करेंगे कि अगले मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे 7 दिन के अंदर कितने चैलेंजेस आपने कंप्लीट किए हैं, कितने नहीं किए। चैलेंजेस क्यों हैं? ये चैलेंज छोटे छोटे से हैं, लेकिन सिर्फ इसलिए है सो दैट यू कैन स्ट्रेंथन योर विल पावर। करेक्ट? कि अगर हमने कुछ फैसला लिया कि हम कर पा रहे हैं कि नहीं, हम टिक पा रहे हैं कि नहीं टिक पा रहे उस पर। अगर मैंने सोचा कि मैं आज लंच नहीं करूंगा, if the challenge is there is no lunch, can we stay without lunch for a day? Can we not? जैसे ही हम इस चैलेंज को पार करते हैं और कोशिश करते हैं इसको पार करने की, तो अंदर से कुछ जर्मिनेट होता है, हमारी मेंटल टफनेस बढ़नी शुरू होती है। वी स्टार्ट बिकमिंग फियरलेस, वी स्टार्ट बिकमिंग स्ट्रॉन्ग इन आवरसेल्व्स कि नहीं यार, अगर मैंने फैसला कर लिया तो मैं कर लेता हूँ। अगर मैंने तय कर लिया कि इससे बात नहीं करनी 2 दिन, तो इससे बात नहीं करूंगा, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। ये मैंने तय कर लिया कि ये नौकरी नहीं करनी, फिर ये जितने मर्जी पैसे दें तो नहीं करनी है। You understand? Now what happens is we are trying to strengthen our willpower. This willpower is very, very important so that you can do something with your life.
अदरवाइज क्या करता है, जरा सी कोई टेम्पटेशन होती है हम बहते चले जाते हैं। आज पहला दिन है, डाइट का शुरू किया, किसी ने चॉकलेट केक घर पे भेज दिया तो हम सोचते हैं कल से डाइट करेंगे, आज छोड़ देते हैं। होता कि नहीं होता? बाकी सब कल से होगा, आज तो खा लेते हैं, सबके साथ ऐसा होता है। तो क्या होता है, लेकिन अगर आपके विल पावर स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रेंथन है, तो आप कहते नहीं तो नहीं, चाहे कुछ भी, केक वेस्ट आ रहा है जाना दो, आज मैंने डिसाइड कर लिया, आज मैं डिसाइड करूंगा, केक डिसाइड नहीं करेगा कि मुझे खाना क्या नहीं खाना, राइट? Once you start deciding, you start taking the onus of your life, you start taking the accountability of your life. That's where life will start to transform. That's where you leave the old conditioning and new something starts to develop out of you. Simple. Okay, so at 6 a.m. stories present की जाएंगी, sorry, at 6 a.m. every day एक challenge present किया जाएगा हमारी story में। आप story देख सकते हैं, challenge को फॉलो करें, आज कंप्लीट कर लेंगे तो आप टैग करते हैं जैसे 5 AM और हमें टैग करते हैं @himanshu एंड वहां पे यू कैन राइट चैलेंज कंप्लीटेड और नॉट कंप्लीटेड। प्राइवेट अकाउंट है तो पब्लिक बना लीजिए, नहीं पब्लिक बनाना चाहते हैं तो प्राइवेट अकाउंट एक्स्ट्रा खोल लीजिए, उसको पब्लिक बना दीजिए, तो पता ही है आप सभी को, बस इतना ही सिंपल है। तो चैलेंज कंप्लीट कीजिए एंड विल मीट अगेन ऑन संडे एंड विल सी किसने कितने चैलेंजेस कंप्लीट किए हैं, और देन विल आल्सो टेक रिवीजन ऑफ दैट। ओके, क्लियर? हाँ जी, तेजस्विनी जी, 1 सेकंड। स्नेहल, तेजस्विनी जी कुछ कहना चाहती हैं? देन विल एंड द सेशन। तो यूजुअली Q&A तो इसलिए ज्वाइन करती हूँ कि क्वेश्चन हमेशा रहते, मतलब बहुत टाइम रहते हैं, कभी तो नहीं रहते, बट दूसरों के क्वेश्चन से हमारे आंसर्ड क्वेश्चंस का भी आंसर मिल जाता है। So that's really very good. Sir, am I audible? Yes, you are audible. Correct बात है आपकी। Yes, and 5M तो बहुत अच्छे से चल रहा है, all thanks to you. Wonderful, wonderful, very nice. तो 176 प्लस हो गए हैं, so like अगर सब सही से होता तो आई गेस वो 276 होते, बट नेवरदलेस चलो ठीक है, ब्रेक का आगे बढ़ते हैं। कोई नहीं, this will also happen. Yes sir, और आपके ओल्ड सैट पार्टिसिपेंट्स को सबको आपको विश करना था कल, बहुत ही ईगरली हम वेट कर रहे थे बट हो नहीं पाया, but we have posted something, some video for you with collaboration with you. Okay, wonderful. और मुझे हाँ, सबने कहा कि आज अगर तुम जाओगी हमारा तो आना पॉसिबल नहीं होगा, तो प्लीज सर को मैसेज भेज देना। तो मोना दी, प्रियंका, श्रुति, आद्यस्मिता, सबने आपको बर्थडे विश किया है, बहुत सारा, ढेर सारा ढेर सारा प्यार और आई गेस आपको टाइम तो नहीं मिला होगा ग्रैटिट्यूड लेटर पढ़ने का, तो नहीं पढ़ा, I'm so sorry, my bad. But why has Gopiji not given me the gratitude letter? She had sent me today in the morning some video which had you. Yeah. I have not seen the video. Is it a combined video where everyone is there, or is it your video? No, yes sir, सब है, combined video है वो हमने कल पोस्ट किया है। तो I have not seen it. I think she sent me. अच्छा, आपने पोस्ट भी किया है? Yes sir, आपको कोलैबोरेट करके बहुत वो हुआ नहीं है क्योंकि ऑब्वियसली आप सबको टाइम नहीं था, मुझे पता है, सो let me अच्छा, so 1 second, you guys have created a video, you have tagged me and collaborated with me as well, right? This is what you're saying? Yes sir. So we will check it, I will check it afterwards and then we'll see. Don't worry about that. I'll ask Gopiji. लेटर डायरेक्टली आपको ही देना था, इसलिए मैंने अब तक पढ़ा नहीं वो आपके सामने, so that's why. नहीं, but I will only read it. I will ask Gopiji. She has not sent me. I think उनके दिमाग से निकल गया होगा. After the session, I will tell her. आपको क्योंकि मैम ने कहा था कि अगर चैट में भेजती हूँ तो बहुत बार मिस हो जाता है क्योंकि सर बिजी है. So sir, I know there is nothing extraordinary in that because आपको तो सब वैसे सब सेम ही रहता है. जो दिल से आया तो कभी फेक नहीं रहता है, बस दिल से आया और लिखा हुआ है, तो मतलब मुझे वही पढ़ के तो it's there. Thank you. Yes, I will read it. I will read it 100%. I will check the video as well. Thank you, sir. Thank you so much, and thank you so much. Thank you. And making our lives. Thank you. Thank you. You're truly amazing. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. Jyotsna, unmute yourself. Yes, sir. कितने दिन हो गए आपको 5 AM में? 387 days. Oh my God, this is incredible. Let me clap for you, man. This is brilliant. 283 days.
87 sir, 87. 387. Oh my God. Unbelievable. I know you and Priyanka have been absolutely fantastic and consistent. बहुत 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 कमाल की बात है, and it's worth appreciating at every end. चाहे कुछ भी हो, किसी भी समय में, I have been seeing your post and Priyanka's post like non-stop. I have not been able to follow in between because of my shoots and this and that, but you guys have done it despite of everything. It is worth appreciating. Damn It's damn all good. because of you. Your No, it's not motivational because of me. videos. It's because of you. No. इसका श्रेय मैं ले नहीं सकता. मैं वैसे भी किसी भी चीज का श्रेय नहीं ले सकता. But ये इसका श्रेय आपको ही जाता है. ये आपकी मेहनत है, आपका सुबह उठना, आपका अपनी जिंदगी को संवारना, आप अपनी जिंदगी में जो करना चाहते हैं, जैसे करना चाहते हैं, उसके लिए एक नई दिशा देना, ये बहुत कमाल है. और मैं टाइमिंग्स भी देखता हूँ कि कोई 3:30 बजे, कोई 4 बजे, कोई 4:15, कोई 4:30. बट फिर आपका जो लिखना है, जो कंटिन्यू रहता है, every day one quote that you write on a piece of paper with your pen, and we also created one video on that, I remember. Yeah sir. Recently. I have seen later on actually. Meanwhile मेरा भी सर एक्सीडेंट हो गया था, तो बीच में 10 to 15 days मेरे भी थोड़े ये हो गए थे. Now recovered, I'm recovered. So I have started again. तो ऐसा लगा नहीं, बट वो था कि बॉडी उड़ जाती, लेकिन I cannot write that. So I know, I understand. कोई नहीं, but you're doing very, very good for yourself. I'm very happy. Thank you. Okay, everyone, thank you so much. I will see you back again now on Sunday. और आपको challenges सुबह मिल जाएंगे. 5 AM continues as it is. सुबह उठें और अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी with all the challenges as well. Okay. Thank you so much. Take care of yourself. God bless you. Sir, book. Okay. कौन सी किताबें पढ़ेंगे? Simple किताबें. Okay. ऐसे बहुत सारी किताबें हैं. क्या simple किताब बताऊं? I really want you guys to read Eckhart Tolle की किताबें हैं, वो पढ़िए अगर पढ़ सकते हैं तो. वो बहुत अच्छी किताबें हैं. उसमें से पावर ऑफ नाउ. Okay, so the author is called Eckhart Tolle, ECKARTTOLLE. इनकी 4-5 किताबें हैं. One is called The Power of Now. Second is Practicing the Power of Now. Third is Stillness Speaks. Fourth is Oneness with Life. Fifth is A New Earth. ये 5 किताबें हैं. पावर ऑफ नाउ थोड़ी सी लेयर्ड और कॉम्प्लिकेटेड है. अगर नहीं पढ़ना चाहते, सिंपल किताबें प्रैक्टिसिंग द पावर ऑफ नाउ, स्टिलनेस स्पीक्स पढ़ सकते हैं, वननेस विद लाइफ पढ़ सकते हैं. इनकी 5 किताबें हैं. आप कोई भी कहीं से भी शुरू करना चाहते हैं, पढ़ सकते हैं. इसके अलावा ऐसे तो बहुत सारी किताबें, सिंपल किताब. और मैं इसलिए 5 किताबें आपको रिकमेंड कर रहा हूँ क्योंकि दिस ओनली टॉक्स अबाउट द प्रेजेंट मोमेंट. क्योंकि जब ये समझ में आ जाएगा, इसी के अंदर पेन है, इसी के अंदर सफरिंग है, इसी के अंदर ईगो है, इसी के अंदर प्रेजेंट मोमेंट है. ये सारी ये किताबें ना बहुत सिंप्लीफाई कर देती हैं हर चीज को. अगर थोड़ा सा समझ जाएंगे तो मुझे लग रहा है जो डिफॉल्ट मोड पास्ट और फ्यूचर का है वो प्रेजेंट मोमेंट पे आ जाएगा. जब प्रेजेंट मोमेंट पे आ जाएगा तो एक्सेप्टेंस आ जाएगी. तो अगर कर सकते हैं तो ये करें, सिंपल है. उसके अलावा जय शेट्टी की किताब है, वो भी सिंपल किताब है अगर आप पढ़ना चाहते हैं. आई एम फॉरगेटिंग द नेम. So think like a monk. Monks. Think like a Think monk. like a वो monk. है अगर पढ़ना चाहते हैं. Yes, think like a monk. Yes. एक एंड्रयू मैथ्यूज की कुछ किताबें हैं. एंड्रयू मैथ्यूज एक ऑथर रहे हैं काफी पुराने. उनकी किताबें हैं बी हैप्पी, फॉलो योर हार्ट. ये सिंपल किताबों में से एक है. और दीपक चोपड़ा जी की किताब है द 7 स्पिरिचुअल लॉज ऑफ सक्सेस. उनकी एक और किताब है सिंक्रो डेस्टिनी. अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो वो बड़ी अच्छी किताब है. एक्चुअली बहुत सारे ऑथर्स हैं. simple. My recommendation to you would be to read Eckhart Tolle's books to start off with. अगर आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि प्रेजेंट मोमेंट जब समझ में आ जाएगा तो चीजें थोड़ी सी क्लियर हो जाएंगी. बाकी तो और भी किताबें आप पढ़ सकते हैं. ठीक है बॉक्स? Yes, sir. Thank you so much. Okay, wonderful. Thank you so much, everyone. Take care of yourself. Thank God you, sir. bless Thank you. you, sir. Thank you. See you back again. Thank you. Thank you, sir. Bye. Thank you, everyone.